مناسک حج کا آغاز عازمین حج کی نماز ظہر سے پہلے مینا میں خیموں کی بستی بسا دی گئی۔ آج کی رات قیام بھی مینا میں ہی ہوگا۔ آج زمین 9 ذی الحج کی صبح حج کے سب سے اہم رکن وقوف عرفہ کے لیے عرفات روانہ ہوں گے۔ سعودی حکام کے مطابق 90 ممالک سے 1300 شاہی مہمان بھی اس سال فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں سرویننس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ 7 رکنی لاشر بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ نیا 6 رکنی بینچ تشکیل۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خود کو 7 رکنی بینچ سے الگ کر لیا۔ کہا میرے کنڈکٹ پر انگلی اٹھا تو بینچ کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں نئے حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ پنجاب سمیت مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، شکر گڑھ، پسرور، شیخوپورہ میں آسمانی بجلی گرنے کے مختلف واقعات میں 12 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ ایف آئی اے نے پی ٹی آئی صدر چودھری پرویز الہی کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے کی ٹیم چودھری پرویز الہی کو کیمپ جیل سے لے کر عدالت روانہ ہو گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری شریک کے چیئرمین آصف علی زرداری دبئی پہنچ گئے۔ دونوں کی دبئی میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کا امکان ہے۔ انٹر بینک میں کاروباری ہفتے کے آغاز پر ہی ڈالر کی قیمت میں اضافہ۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں 36 پیسے اضافہ ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 1016 پوائنٹس اضافے کے بعد 100 انڈیکس 41,082 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ اسپیشل اولمپکس ورلڈ گیمز میں پاکستان نے ایک اور گولڈ میڈل جیت لیا جس کے بعد پاکستان کی گولڈ میڈلز کی تعداد 10 ہو گئی۔ پاکستان کے سفیر عابد نے سائیکلنگ ایونٹ کے 10 کلومیٹر دوڑ میں گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا جبکہ خواتین سائیکلنگ میں پاکستان کی مدیحہ طاہر نے چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ اور حریم شاہ نے کہا کہ میں جن سیاستدانوں کی ویڈیوز لیک کرتی ہوں وہ اسی قابل ہیں۔ لاہور پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حریم شاہ نے کہا کہ ویڈیو لیک سے متعلق جس نے مجھ پر کیس کرنا ہے کر لے، مجھے کسی کا خوف نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے مجھے دھمکیاں دی لیکن میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس ملک میں جو ہوں جو کرنا ہے کر لے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسنین حیدر۔ میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز اپنے جانب بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے مگر اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کینن سنو فال روم کولر ٹھنڈ پالے۔ کینن ہوم اپلائنسز چلے سال ہسائے، کارکردگی بے مثال۔ کوہ نور فیشن ہب، اسٹائل اپ یور لائف۔ پاکستان کے تمام لیڈیز اور جینٹس برانڈز ایک ہی چھت کے نیچے۔ بوتیک اسٹائل، روسی ملبوسات، لہنگا، غرارہ، ساڑی، میکسی، 3 پیس لانگ پرنٹ، 3 پیس چکن، نرسری پرنٹ، جینٹس ویرائٹی،
और लेडीज अंडरगारमेंट्स के लिए अलग से फ्लोर मौजूद। एड्रेस नर्स पियर्सोपम 65 अल्लामा इकबाल रोड, गड़ी शाहू, लाहौर। टेलीफोन नंबर 923257864400। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। जब हम रोटी की बात करते हैं तो ये वो रोटी है जिसकी खातिर इंसान सुबह से लेके शाम तक मेहनत करता है। नान और रोटी की कीमत जब इंसान की पहुंच से बाहर होगी तो फिर आप इस मुल्क को किस तरीके से देखते हैं? पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो अपना काम छोड़ के अब चालान भी करना शुरू कर दिए उन्होंने। ये बिल्कुल नहायत ही इसने ये गलत काम किया है आईजी पंजाब साहब ने। और जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो चेयरमैन हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो क्यों आखिर जो है वो अपने लोगों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है? आपके एरिया में अगर एरिया में वाल्टन पे 2 बंदों की ड्यूटी है, इंस्पेक्टर्स की या किसी की ड्यूटी है, तो उनको चाहिए कि वो रोजाना वहाँ पर मौजूद हो फील्ड में। क्यों जो है वो सरकारी कोटा गंदम का बंद कर दिया गया? फ्लोर मिल्स को जो है वो आटे की फराहमी मुमकिन क्यों नहीं बनाई जा रही? इक़्तिदार में आने से पहले ये अवाम को कोई कपड़े बेचकर आटा देने की बात करता है, कोई रियासत मदीना के ख्वाब दिखाता है। देखें, अवाम को इन्होंने इस कदर मजबूर कर दिया है कि वो बेचारे 2 वक्त की रोटी पूरी करने में लगे हैं। अवाम कुछ कहती है, सियासतदान कुछ कहते हैं। देखना यह है कि कानून क्या कहता है। फर्क नहीं पड़ता मजलिस शूरा क्या कहती है। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मनासिक हज का आगाज़ हो गया। ज़मीन हज की नमाज ज़ोहर से पहले मीना आमद, मीना में खैमों की बस्ती बसा दी गई। आज की रात क़याम भी मीना में ही होगा। आज ज़मीन 9 ज़िलहज की सुबह हज के सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफा के लिए अरफात रवाना होंगे। सऊदी हुकाम के मुताबिक 90 ममालिक से 1300 शाही मेहमान भी इस साल फ़रीज़ा हज अदा कर रहे हैं। आज़मी 9 ज़िलहज की सुबह हज के सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफा के लिए अरफात रवाना होंगे। आज़मीन की हिफाजत के लिए सऊदी महकमा शहरी दिफा ने गैस सिलेंडर रखने की सख्ती से मुमानत की है। 90 ममालिक से 1300 शाही मेहमान आज़मीन भी इस साल फ़रीज़ा हज अदा कर रहे हैं। सऊदी हुकाम के मुताबिक जुमे के दिन तक दुनिया भर से 1.6 मिलियन आज़मीन सऊदी अरब पहुँचे थे। सऊदी अरब के अंदर से ही हज अदा करने के लिए हरम मक्की पहुँचने वालों की तादाद का ऐलान ताहाल नहीं किया गया। सऊदी हुकाम को तवक्को है कि रवां बरस 160 मुल्कों से 20 लाख से ज्यादा आज़मीन हज अदा करेंगे। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी हज की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर सऊदी हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक और कौंसल जनरल खालिद मजीद ने सदर मुमलिकत का खैर मकदम किया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने एयरपोर्ट लाउंज में डेप्यूटी गवर्नर मक्का बदर बिन सुल्तान से मुलाकात की और 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हज की सादत के लिए सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक और कौंसल जनरल खालिद मजीद ने खैर मकदम किया। सुप्रीम कोर्ट से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच एक बार फिर टूट गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को 7 रुकनी बेंच से अलग कर लिया। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच एक बार फिर टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को 7 रुकनी बेंच से अलग कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक दरख्वास्त गुजार जस्टिस मंसूर अली शाह के रिश्तेदार हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इसलिए उनके कंडक्ट पर असर पड़ सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मैं अपना कंडक्ट अच्छी तरह जानता हूँ,
कोई एक उंगली भी उठा दे तो फिर मैं कभी इस बेंच का हिस्सा नहीं रहता। चीफ जस्टिस ने दोबारा समाअत के लिए 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल है। समाअत के दोबारा आगाज पर चेयरमैन पीटीआई के वकील हामिद खान रोस्ट्रम पर आए और अदालत से मुखातिब होते हुए कहा कि हमारी दरख्वास्त पर नंबर नहीं लगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले पर बाद में आएंगे, अभी हम एक सीट बैग से रिकवर करके आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ दलाइल के बजाय दीगर हरबे आजमाए जा रहे हैं। आपने दरख्वास्त में भी मुख्तलिफ इस्तदाएं कर रखी हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि अपने पहले दिन के सवाल पर जाऊंगी कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D का इतलाक किस पर होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि अफवाज के अफसरान का भी मिलिट्री कोर्स में कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बरतानिया और अमरीका में मखसूस हालात में फौजी अफसरान के फौजी अदालतों में ट्रायल होते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि FPLE केस तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स के ट्रायल पर था। चीफ जस्टिस ने इख्तिसार किया क्या अभी किसी का ट्रायल शुरू हुआ है। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि अभी किसी का ट्रायल नहीं शुरू हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप फिर मफरूज़ों पर बात ना करें कि ट्रायल होगा तो यूं होगा, ऐसे तो कल मिलिट्री अफसरान के ट्रायल पर भी बात की जाएगी। हमारे पास कल आखिरी वर्किंग डे है, मुतल्लिका बात ही करें। चीफ जस्टिस ने इख्तिसार किया कि आप आर्टिकल 175 की शिक 3 को बुनियादी इंसानी हकूक से कैसे जोड़ रहे हैं। इसका इतलाक तो फिर फौजी अदालतों पर भी होगा। 175 की शिक 3 का यहाँ क्या ताल्लुक है। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा से मुकालमे में कहा, रिमार्क्स ये कि आप जो बात कर रहे हैं वो फौजियों के हक में है की जाती हैं। हम बहुत सादा लोग हैं, हमें सादा अल्फाज में बताएं। जो बातें यहाँ कर रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर करें। हमें यही बताएं क्या सिविलियन को बुनियादी हकूक से महरूम किया जा सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि हम मिलिट्री कोर्ट्स को कैसे कहें कि वो अदालतें नहीं हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ऐसी कई अदालतें और ट्रिब्यूनल हैं जिनका आर्टिकल 175 से ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया क्या मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले चैलेंज नहीं हो सकते। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्मी चीफ के सामने या उनकी बनाई कमेटी के सामने फैसले चैलेंज हो सकते हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट एक मतवाज़ी निज़ाम है जिसे अदालत नहीं कह सकते। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अमरीकी कानून इन आम शहरियों के बारे में क्या कहता है जो रियासत के खिलाफ डट जाएं। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि अमरीका में आम शहरियों की गैर रियासती सरगर्मियों पर भी ट्रायल सिविल अदालतों में ही होता है। पंजाब लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश ने शेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। शकटगढ़, पसरूर, शेखोपुरा में आसमानी बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अफराद जहाँ बहक मुतादिद ज़ख्मी हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक 59 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। सैदपुर 45, गोलड़ा 53, बोकड़ा 55, PMDH8 में 48, शमशाबाद 49, चकलाला के मकाम पर 59 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 10 फुट जबकि गवाल मंडी पुल पर 8 फुट तक पहुंच चुकी है। उधर कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई। कई नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। दकी में आसमानी बिजली गिरने से एक भाई जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। कोयटा और एतराफ़ में हल्की और तेज़ बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा के अलावा बलोचिस्तान के दीगर शहरों में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई है। खुजरान में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में भी तूफ़ानी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई जिसके बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों एबर्ट रोड, डेविस रोड, अब्दुल करीम रोड, केनाल रोड, शिमला पहाड़ी और मुल्हिका इलाकों में बादल बरसे। घड़ी शाहो, शालीमार और बागबानपुरा समेत दीगर इलाकों में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी भी खड़ा हो गया जिसके बायस ट्रैफिक और बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि लाहौर में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 3 बहन भाई जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कहना के करीब सोए आसल रोड पर हादसा पेश आया जहां 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गईं। हादसे के नतीजे में 3 बहन भाई जान की बाजी हार गए जबकि माँ और 2 बेटे जख्मी हो गए जिन्हें तिबी इमदाद के लिए
हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में जहाँ बहक होने वालों की शनाख्त अहमद, हसन और फिजा के नामों से हुई है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि लाहौर में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 3 बहन भाई जहाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आहना के करीब सुयासल रोड पर हादसा पेश आया, जहाँ 2 तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिलें सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 3 बहन भाई मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि माँ और बेटे भी शहीद हो गए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि FIA ने PTI सदर चौधरी परवेज इलाही को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया है। FIA का कहना है कि परवेज इलाही से मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में तफ्तीश दरकार है। FIA की टीम चौधरी परवेज इलाही को कैंप जेल से लेकर अदालत रवाना हो गई। FIA ने परवेज इलाही को जिला कचहरी पेश कर दिया। FIA का कहना है कि परवेज इलाही के मुबैना फ्रंटमैन मोहम्मद जमान के बारे में पूछगिछ करनी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनके साहबजादे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खसूसी तैयारे पर कराची से दुबई पहुंच गए। ईद उल अज़हा दुबई में गुजारेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी ईद के बाद वतन वापस आएंगे। दोनों की दुबई में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात होने का भी इम्कान है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी अपना दौरा चीन मनसूख करके दुबई गए हैं। उन्होंने 26 जून को 3 रोज़ा दौरे पर चीन के शहर त्यांजन जाना था। शेड्यूलिंग के मसाइल के बायस दौरा चीन मुलतवी किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई के बाद सरकारी दौरे पर चीन रवाना होंगे। तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह में हायल कानूनी पेचीदगियों के हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। पार्टी ज़राए के मुताबिक लीगल टीम ने वापसी के हवाले से हिकमत अमली तैयार करके नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। ईद के फौरी बाद वकालतनामे नवाज शरीफ को लंदन भिजवाए जाएंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत दायर की जाएगी। ज़राए का मजीद कहना है कि नवाज शरीफ हिफाजती जमानत मिलने पर लंदन से पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करेंगे। हिफाजती जमानत के दौरान ही सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला कराने की कोशिश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक अगर जेल जाना कानूनन ज़रूरी हुआ तो नवाज शरीफ के घर को सब जेल करार दे दिया जाएगा। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में नाअहली की मुद्दत 5 साल तक महदूद करने के बिल की मंजूरी के साथ ही वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश कर दी है। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बिल की मंजूरी के बाद इसहाक डार ने नवाज शरीफ को फ़ोन किया। इस मौका पर इसहाक डार की तरफ से कायद मुस्लिम लीग नून को तरक्की पर मुबारकबाद दी गई। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का तारीख बिल आज बाकायदा किताब का हिस्सा बन जाएगा। PIA इंतजामिया ने पायलट्स के फ्लाइंग अलाउंस में 35% तक इजाफे का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ्लाइंग अलाउंस के हुसूल के लिए कम अज़ कम 50 घंटे तैयारा उड़ाना लाजमी करार दे दिया गया और 10 साल की सर्विस पर पायलट्स के फ्लाइंग अलाउंस में 35% इजाफा होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 साल सर्विस वाले के पायलट्स के फ्लाइंग अलाउंस में 30% इजाफा, जबकि 30 साल तक सर्विस करने वाले पायलट्स के फ्लाइंग अलाउंस में 25% इजाफा होगा। 30 साल से ज़्यादा सर्विस देने वाले पायलट्स के फ्लाइंग अलाउंस में 20% तक इजाफा मुतवक्किल। ड्यूटी से इनकार और बगैर वजह की छुट्टी करने वाले पायलट्स को फ्लाइंग अलाउंस नहीं मिलेगा। 60 घंटे फ्लाइंग पर PIA के पायलट्स को 150% फी घंटे के हिसाब से अलाउंस मिलेगा, जबकि 70 घंटे फ्लाइंग करने वाले पायलट्स को फी घंटा 200% के हिसाब से फ्लाइंग अलाउंस मिलेगा। 10 साल की सर्विस पर पायलट्स के फ्लाइंग अलाउंस में 35% इजाफा होगा। और अब कुछ बात करेंगे डॉलर की। तो इंटरबैंक में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर ही डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 36 पैसे इजाफा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये 10 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी देखी गई है। स्टॉक मार्केट में 1016 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 41,082 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच चुका है।
खबर शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के यूथ प्रोग्राम से स्पोर्ट्स को फ़रोग़ मिलेगा। गवर्नर सिंध का बयान, कहा कि कराची में छुपे टैलेंट को सामने लाने में ये प्रोग्राम बहुत अहमियत का हामिल होगा। HEC तालीम के साथ स्पोर्ट्स में भी काम कर रही है। हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन कई सालों से हॉकी बहुत पीछे चली गई है। कराची में टैलेंट है, इससे मौका देने की ज़रूरत है। गवर्नर के मनसब पर जब से बैठा हूँ, खेल मेरी अव्वली तरजीहात में शामिल है, ऐसा उनका कहना था। कामरान खान टेसूरी ने मजीद कहा कि जब तक मैदान आबाद नहीं होंगे हम हर शोबे में दूर चले जाएंगे। कराची गेम्स का इन्नेकाद हर साल कराने की कोशिश करूंगा। हॉकी लीग में शरीक तमाम खिलाड़ियों को गवर्नर हाउस में शाया दूंगा। खिलाड़ियों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं, मेहनत जारी रखें। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कैनन स्नोफॉल रूम कूलर, ठंड पाले। कैनन होम अप्लायंसेस, चले साल हसाए, कारकर्दगी बेमिसाल। तो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में नौजवानों को क्या किरदार अदा करना? इनका किरदार या इनका काम 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। आप क्या लेते हैं कि अगर मेयरशिप बन जाती है तो वाकई कराची के हालात चेंज? कराची ने हमेशा पीपल्स पार्टी को कभी बहुत कम मैंडेट दिया, और अभी अगर हमारा मेयर आता है तो इंशाल्लाह ताला कराची की सारी मेयरी में तो मैं नहीं कह सकते हम ख़त्म कर सकते। तो एजुकेशन, हेल्थ और पानी जो है देहाती एरियाज में चैलेंज है आपके लिए? हमारे पास रावल लेक और उसके साथ डैम है, हमारे पास सिमली डैम है, खानपुर डैम से कॉन्ट्रैक्ट करके थ्रू पाइपलाइन हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी है, इनकी फलाह व बहबूद के लिए जो बाहर पाकिस्तानी है, आपकी मिनिस्ट्री क्या काम करती है? जितने भी हमारे ओवरसीज जो डिपोर्ट हो जाते हैं वो हमारी GS है जो है ना, जर्मन का एक प्रोजेक्ट है OPF के साथ, उनके थ्रू हम उनको रोजगार देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक खातून चाहे नहीं और मर्द की जरूरत है उसको बुरी नज़र से देख। मुझे 22 ईयर्स हो गए प्रोफेशनल लाइफ में आए हुए, मुझे मर्दों से कोई शिकायत नहीं है। किसी भी फॉर्म में जब डिह्यूमनाइजेशन होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करें, देखिए प्रोग्राम शिकायत इतवार की रात 7 बजे सिर्फ कोहिनूर न्यूज़ पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज अराई। नाजरीन का ये कहना था जो रोड पे बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं, इनके लिए महकमा जो है ये चाइल्ड ब्यूरो ये क्या काम कर रहा है? एंड वेलफेयर ब्यूरो की ये जिम्मेदारी है कि इस कौम के बच्चों को और बच्चों की सूरत में मुस्तकबिल को ख़राब होने से बचाए। तो आप लोग क्या अपने ऊपर जो मामलात हैं, ये जो आपकी सड़कें नहीं बनी, सेवरेज नहीं बना, वेलकम बैक। बुलेटिन में इलाकाई खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि अपालू स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब लाहौर के वफ्द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। वफ्द ने 9 मई के सानहा पर गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि ये बहुत तकलीफ दे लम्हात हैं। ये घर बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब होने के बायस काबिल कदर था। उनका कहना था कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये तखरीबकारी की गई। शरपसंद और उनके आलाकार याद रखें कि ऐसी साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकते। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। अगर किसी ने मैली आंख से भी देखने की जुर्रत की तो उसकी आंख निकाल देंगे। 9 मई एक कौमी सानहा है। हम मुतालबा करते हैं कि जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात की यकीन दहानी होनी चाहिए कि कोई भी शरपसंद, सहूलतकार और उनका मास्टरमाइंड सजा से नहीं बचना चाहिए। खबर शामिल करेंगे शोरकोट से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में ईद उल अज़हा के सिलसिले में तहसील अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें तमाम मुकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम, अमन कमेटी के मेंबरान, DSP शोरकोट स्पेशल ब्रांच, मीडिया नुमाइंदगान, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर सिक्योरिटी और अमनो अमान के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर वहाँ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात इनसे लेंगे। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस शोरकोट में। आपको बताता चलूँ कि आज
عید الاضحیٰ کے حوالے سے یہاں پر امن کمیٹی شرکوٹ کی تحصیل کی جو اسپیشل میٹنگ کی گئی ہے تاکہ امن امان کو برقرار رکھا جائے، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے یہاں پر میٹنگ اٹینڈ بھی کی اور مختلف احکامات بھی جاری کیے۔ میرے ساتھ اسی صاحب موجود ہیں۔ سر بتائیے کہ آج آپ کا آپس میں اسپیشل امن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جہاں پر مولانا سماوی سیال صاحب اور باقی تمام علماء کے مولانا زید صاحب، مولانا مفتی نصیر صاحب بھی شامل ہیں، DSP صاحب بھی شامل ہیں، کیا احکامات جاری کیے گئے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آج تحصیل شور کوٹ کے تمام معزز جو امن کمیٹی کے ممبران ہیں تمام نے شرکت کی ہے یہاں پہ، اور ابھی جو عید الاضحیٰ کا موقع ہے اور اس میں بھی کافی سارے جو انتظامات کے حوالے سے مشاورت ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ عرس ہوتا ہے اور اس کے بعد محرم الحرام کے حوالے سے کافی مشاورت ہوئی ہے، اور بہت سارے جو شہر کے ایشوز ہیں ان پہ بات ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ امن کمیٹی کا جو اجلاس ہے یہ شہر کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے اور شہر کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ مولانا سماوی سیال صاحب، سر آپ بتائیں گے آج بھی آپ میٹنگ میں شامل ہوئے ہیں، آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ اور عاشورہ شریف اور اس حوالے سے یہاں پہ معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں۔ الحمدللہ مولانا زاہد انور صاحب، مفتی نصیر احمد صاحب اور عمران رضا صاحب ہیں، DSP صاحب، اسسٹنٹ کمشنر صاحب اور یہ فقیر، تو ایک بہترین ٹیم ہے جو اس شہر کی ترقی کے لیے، اس میں امن و امان کی بہتری کے لیے الحمدللہ موجود ہے۔ انشاءاللہ شہر کی ترقی کے لیے، امن و امان کے لیے اور ملکی استحکام کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ جی بالکل، کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر ملکی سطح پر جو معاملات ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، اور یہاں پر جو امن کمیٹی کے ممبران ہیں وہ اپنی شانہ بشانہ اپنی خدمات پیش کر کے ہیں۔ پہلے کے حالات کی طرح ابھی بھی اس مرتبہ عید الاضحیٰ دن ہو یا یوم عاشور آ رہا ہے، اس کے لیے بھرپور طریقے کے ساتھ تعاون کیا جائے گا، انتظامیہ کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے گا۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا۔ چشتیہ میں بڑی تعداد میں شہریوں نے جانور خریدنے کے لیے مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا، مگر پچھلے سال کی نسبت اس سال قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے بیوپاری اور خریدار دونوں پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مویشی منڈی میں موجود ہمارے نمائندے طاہر الحسن سے۔ جی طاہر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی چشتیاں کی مویشی منڈیوں میں بڑی تعداد میں رش جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ فرزندان اسلام نے سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے بڑی تعداد میں مویشی منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں، جہاں پر وہ اپنی من پسند کے جانور جو ہے وہ تلاش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر بات کریں تو جو غریب طبقہ لوگ ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق یہاں پر جانور تلاش کر رہے ہیں۔ میں اس وقت چشتیاں کی مویشی منڈی میں موجود ہوں، میرے ساتھ یہاں پر کچھ خریدار موجود ہیں جو کہ اپنے قربانی ادا کرنے کے لیے وہ جانور خریدنے کے لیے ان سے بات کریں گے۔ سر، جانور خریدنے کے لیے آئے ہیں تو اس دفعہ آپ کون سا جانور قربانی کے لیے لے رہے ہیں؟ بڑا بھی اور چھوٹا بھی لے رہے ہیں۔ بڑا میرا ہے 1.5 پونے 2 لاکھ کا، 1.25 لاکھ کا، بکرا جو ملتا 3500 40,000 کا، 60,000 کا، 70,000 کا۔ اس لیے بہت مہنگائی ہے، اس واسطے کر کے نا ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہا مال۔ مہنگائی زیادہ ہے پھر بھی آپ نے سنت ابراہیمی کو ادا لازماً کرنا ہے، جانور یہاں سے خرید کر جائیں گے؟ انشاءاللہ کرنا، لے کے جائیں گے۔ پچھلے سال کی نسبت اس سال قیمتوں میں کس قدر اضافہ ہوا ہے؟ 15%، 15,000 روپے پچھلے سال سے زیادہ ہے۔ ہاں جی جی بالکل، آپ نے یہاں پر شہری کی بات سنی، مہنگائی کا شکوہ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی بے شک زیادہ ہے لیکن سنت ابراہیمی کو ہم نے لازماً ادا کرنا ہے۔ ہم یہاں پر مویشی منڈی میں آئے ہیں لیکن ہم جانور جو ہے وہ خرید کر جائیں گے۔ اگر بات کریں تو مہنگائی کا شکوہ جو ہے ویپاری اور خریدار جو ہے وہ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر مویشی منڈی کی صورتحال کے حوالے سے اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں تو یہاں پر بجلی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ویپاری حضرات دیگر شہروں سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ یہاں پر کوئی بھی حادثہ جو ہے وہ حالات خراب ہونے کی وجہ سے رونما ہو سکتا ہے۔ تو انتظام خبر شامل کریں گے ایبٹ آباد سے، جہاں ٹریفک پولیس کے اہلکار مرکزی شاہراہ ریشم کے درمیان گاڑیوں کو روک کر جرمانے کرنے لگے۔ گاڑیوں کی طویل قطاریں معمول بن گئیں جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عبید الرحمان سلیمانی سے۔ جو عبید، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، مرکزی شہر ریشم ایبٹ آباد پر ہم موجود ہیں جہاں پر مثالی پولیس کے PK پولیس ٹریفک پولیس کی طرف سے ایک غیر قانونی قدم جو کہ ٹریفک پولیس کے جو قوانین ہیں ان کی اپنی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ یہاں سڑک پر قبضہ کیا جا چکا ہے۔ اس وقت تقریباً 6 سے 6.5 فٹ جو جگہ ہے
वो इस तरह सड़क पर गाड़ियाँ चलने से कासर है। सड़क को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। ट्रैफिक कवानीन की जहाँ पर वायलेशन की जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रैफिक पुलिस जब भी गाड़ियों का चलान करती है तो सड़क के दरमियान में गाड़ियों को खड़ा करके चलान करती है, जिसकी वजह से तवील कतारें यहाँ पर नज़र आती हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या इससे अवाम को कुछ फ़ायदा है, खुशी है, क्या है, किस लिए कुछ किया जा रहा है। देखा तो सक्से सामने सारा कुछ ये कंस्ट्रक्शन वाले उन्हें काम किया यकीन सामने बस यही लोगों को तकलीफ है, कदर ट्रैफिक का नहीं छोड़ते कहीं गड्डियाँ ना होना, बस यकीन तो सामने सब कुछ नजर आ रहे। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इसका कुछ अवाम को फ़ायदा है? तो कोई फ़ायदा भाई, फ़ायदा आप देख रहे हो आपके सामने, जैसा रोड है इसको देख लो, इससे ऐसा होना चाहिए। हालांकि इस पर ठीक ठाक खर्च हुआ अगले गवर्नमेंट का, और आगे से जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं, जो मतलब ठेकेदारान हैं, वो भाई ये हिसाब है, बस दबा कोशिश हर जगह पे। भाई साहब ये जो है ना बहुत जुल्म नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आगे रास्ता रोड जो है तंग है और ऊपर से काफ़ी तंग हो गया है, तो इसके हम भरपूर मजम्मत करते हैं। इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्यों जब चालान करते हैं तो रोड के दरमियान में खड़ी होकर उसके बाद करते हैं, पीछे सारी गाड़ियाँ जो बंद हो जाती हैं। तो इस तरह मरीज़ बेचारे आते हैं, वो भी इसी तरह ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। तो बिल्कुल मरीज़ आते हैं और कई किस्म के बुजुर्ग आते हैं, सबको तकलीफ होती है, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जी बिल्कुल जी, काफ़ी शहरियों से भी हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि जब भी से आते हैं मरीज़, शहरी या कोई भी आता है यहाँ पर, तो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। बच्चे स्कूल के ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। तो ये जो गैर कानूनी इक़दाम है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किया गया, इसको फौरी तौर पर यहाँ से ख़त्म किया जाए और ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बेहतर किया जाए। तो वहीं दूसरी जानिब हाड़ी में ईद कुर्बान करीब आते ही दुकानों पर कीकड़ की लकड़ी से बनी हुई मुंडियां सज गई। छुरियां टोके बेचने और तेज करने वालों ने दुकानें सजा ली। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां आमिर कुरैशी से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए और मुसलमान अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त के बाद जो दूसरा मरहला होता है वो छुरियाँ तेज़ करवाना, टोके और किकरी की लकड़ी की मुड़ियाँ वगैरह। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत इस बार लोग सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए उनके में कैसा जज्बा देखा जा रहा है, और बाकों के हवाले से बताइएगा कि उनमें कैसा जोश व खरोश है, और रश के हिस्से बताइएगा। जी पिछली बार से तो काफ़ी कम है, पिछली बार तो काफ़ी रश था, लेकिन इस बार महंगाई की वजह से आवाम में जोश थोड़ा कम नज़र आ रहा है। लेकिन देखते हैं, अभी 2-3 दिन पड़े हैं, आपके सामने मार्केट के हालात बहुत नाजुक है। महंगाई है नहीं, गाहक आते हैं, बहस बहुत करते हैं, काम थोड़ा करवाते हैं। देखिए सारा सामान लगा हुआ है, महंगाई की वजह से जो चीज़ पिछले साल 300 की थी इस साल 600 की है, इतनी महंगाई में फ़र्क आया है। बाकी अल्लाह मुल्क के अदाब पे बस। हाँ जी बिल्कुल, दुकानदार का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस बार जो ग्राहकों का रश बहुत कम दिखाई दे रहा है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी 2-3 दिन बाकी पड़े हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्राहक बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर मज़ीद इस बार मैंने शहरियों से पीपल्स लेबर ब्यूरो मेडिकल कमेटी कराची डिवीजन के चीफ ऑर्गेनाइजर, डेप्यूटी चीफ ऑर्गेनाइजर, कमेटी मेंबरान के सदर असलम समूह से मुशावरत हुई। अब्बासी शहीद अस्पताल की बाकायदा कमेटी का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए देखिए नूरुल अमीन की ये रिपोर्ट। पीपल्स लेबर ब्यूरो मेडिकल कमेटी कराची डिवीजन के चीफ ऑर्गेनाइजर और डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबरान ने पीपल लेबर ब्यूरो कराची डिवीजन के सदर असलम समूह साहब से बेमी मुशावरत से अब्बासी शहीद अस्पताल की बाकायदा कमेटी का ऐलान कर दिया है। ये कमेटी मुलाजमीन के मसाइल और मरीजों पर काम करेगी और हर माह पीपल लेबर ब्यूरो मेडिकल कमेटी को रिपोर्ट देगी। कमेटी के नाम ये है: सदर मोहम्मद राना अफजल, सीनियर नायब सदर इकबाल कादरी, नायब सदर तस्लीम बानो, नायब सदर अली पटनी, नायब सदर शहबाज शाह, नायब सदर मुनव्वर सुल्ताना, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शाहिद अली, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एस एम इजाज, डिप्टी इंफॉर्मेशन कामरान शाह, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद शकील, डिप्टी फाइनेंस आबिद हमीद, ऑफिस सेक्रेटरी सरताज, ऑफिस सेक्रेटरी सैयद अफजल, ऑफिस सेक्रेटरी नवीद इमाम, कमेटी मेंबर नजर, कमेटी मेंबर निजामुद्दीन, कमेटी मेंबर अनवार अली, कमेटी मेंबर जुनैद, कमेटी मेंबर शाहनवाज, कमेटी मेंबर मोहम्मद मजहर शामिल है। तो सबसे पहले तो ये है कि अब्बासी शहीद अस्पताल में बी नदी भुट्टो साहिबा की सादगिरह के हवाले से जो प्रोग्राम है, आज 70वीं सालगिरह उनकी थी, हम उनको हमेशा याद करते हैं और करते रहेंगे और ना कभी भूलें ना भूलेंगे। तो उस हवाले से आज ये प्रोग्राम था और उसमें असलम समूह भाई जो हमारे डिवीज़न कराची डिवीज़न के सदर हैं लेबर ब्यूरो के, और मैं जो एज अ चीफ ऑर्गेनाइज़र काम कर रहा हूँ
पीपल लेबर ब्यूरो मेडिकल कमेटी कराची डिवीज़न का चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ। तो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी है मुझ पर और उनकी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए हमने तकरीबन 13 सब कमेटियाँ मुख्तलिफ PMC और DMC के हॉस्पिटल में हमने बनाई हैं और इंशाल्लाह और भी हमारा काम जारी है। तो असलम समो भाई जो अब इस वक्त सिटी काउंसिल के रुकन भी हैं, उन्होंने कहा है कि हम इंशाल्लाह आप लोगों की आवाज़ बनेंगे और आप लोगों के काम भी करेंगे और अब्बासी शहीद अस्पताल को उसकी पुरानी पोजीशन में लाएंगे जो पहले थी। अब यह है कि इंशाल्लाह हम सब मिलके अब हमारे साथ जो है अहमद साहब भी थे और डायरेक्टर साहब भी हमारे साथ थे, मौजूद थे प्रोग्राम में। उन्होंने भी मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है और से भी यहाँ पर बहुत काम की ज़रूरत है। अच्छा, जिन लोगों को पिछले 35 साल से इस शहर पे बैठे हुए थे, उनका ये काम था कि हॉस्पिटलों पे तवज्जो देते, एम्प्लॉयज़ पे तवज्जो देते। उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया कि कोई उनको अच्छे नाम से याद करे। कराची के लोगों ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विज़न, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े और बिलावल भुट्टो की क़यादत पे एतमाद का इज़हार करते हुए भरपूर तरीके से हमारे यहाँ चेयरमैन वाइस चेयरमैन को कामयाब किया है। और मेयर कराची जो बिलावल भुट्टो ने कहा था जेला होगा, मुर्तज़ा वाब की सूरत में आया है। और डिप्टी मेयर सलमान मुराद जो शहीद का बेटा है, अब्दुल्ला शहीद मुराद का बेटा है, उनकी क़यादत में शहर की सूरत हाल हम चेंज करेंगे। शहर में जितने भी रुके हुए काम हैं उनको कंप्लीट करेंगे। सिंध हुकूमत ने पहले से ही एक बहुत बड़ा बजट कराची शहर के लिए रखा है, इसके हवाले से हम काम करेंगे और काम करेंगे तो हमारा नाम होगा। बहावल नगर से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि बहावल नगर भावली चौक में डाकुओं ने दुकान का सफाया कर दिया। 3 डाकू शाहीन शॉप में दाखिल हुए और मोबाइल नकदी लूटने के साथ साथ ग्राहकों की जेबों का भी सफाया कर गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से जो इस वक्त दुकान पर मौजूद है। जी शहबाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर के भावली चौक में, जो कि मसरूफ़ तरीन इलाका है, जहाँ पर हज़ारों के तादाद में लोगों का आना जाना लगा रहता है। और यहाँ पर दिन दिहाड़े जो है डकैती की जो वारदात जो है वो देखने को मिली है। और यहाँ पर ये जो एरिया जो है थाना B डिवीज़न के हदूद में आता है। हमारे साथ मौजूद है वो कस्टमर जो कि मौके पर मौजूद है वारदात पर, और इनसे हम बात करेंगे। सर, जब वारदात हुई थी आप मौके पर मौजूद थे और क्या मामला पेश आए, बताएँ आप। जी, हम जैसे पैसे निकालने अंदर बढ़े हैं तो 3 जने खड़े थे, तीनों के पास पिस्टल, तो उन्हें हमारे ऊपर पिस्टल रखा, बोलते हैं पैसे वगैरह सब कुछ निकाल दो वरना मार देंगे। हमने पिस्टल इसका नाम क्या है, पर्स वगैरह सब कुछ उनको दे दिया। बोलते हैं चुप करके बैठे रहो, ठीक है। चंडे वगैरह भी मारा और दुकानदार की भी काफ़ी चीज़ें वगैरह यानी कि खोसे, मोबाइल वगैरह, दुकानदार के भी पैसे वगैरह खोस के और भाग गए यहाँ से। दुकानदार को भी मारा पीटा किया है? जी जी, दुकानदार को भी चपेड़े मारी है। ये कितनी देर में वारदात हुई है? ये सिर्फ 8, 9, 10 मिनट का एक टाइम था बस। कोई मौके पे कुछ छुड़वाने आया, कोई इलाका, कोई लोग? दरवाज़ा बंद था, कोई भी अंदर नहीं आ सकता था। अंदर से उन्होंने ना, एक आदमी बाहर खड़ा था पिस्टल लेके दरवाजे के पास, जो भी अंदर आ रहा था उसको धक्का मार के आगे कर रहे थे। जी, जैसा कि आपने सुना इस कस्टमर की आवाज़ को जो कि मौके पर मौजूद था, वारदात के दौरान इनका कहना था कि मुझे भी मारा पीटा गया और दुकानदार को भी मारा पीटा गया। उनके हाथ से मोबाइल और नकदी यानी कि पैसे भी छीन ले गए हैं। उसकी अमाउंट की जो मिकदार है वो दुकानदार ही बता सकता है। ये जो मौके पर जो कस्टमर मौजूद था, इसने मौके का जो हालात है वो बताया है। लिहाजा ये एक इंतजामिया के लिए सवालिया निशान है। अगर ये कराची का माहौल बहावल नगर में पैदा होने लगा है, अगर इस तरह से ये काम चलता रहा तो गरीब लोग, जो ताजर लोग जो है बिजनेस करने में जो है वो नाकाम दिखाई देंगे, इंतहाई परेशान दिखाई देंगे। लिहाजा आला काम को चाहिए इस बात पर सख्ती से नोटिस लेते हुए इन जो वारदात करने वालों के खिलाफ कानून। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज अलाई। नाजरीन का ये कहना था, जो रोड पे बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं, इनके लिए महकमा जो है ये चाइल्ड ब्यूरो ये क्या काम कर रहा है? एंड वेलफेयर ब्यूरो की ये जिम्मेदारी है कि इस कौम के बच्चों को और बच्चों की सूरत में मुस्तकबिल को
ख़राब होने से बचाए। तो आप लोग क्या अपने ऊपर जो मामलात हैं, ये जो आपकी सड़कें नहीं बनी, सेवरेज नहीं बना, इस चीज़ का टैक्स देते हैं आप? कि अगर ताजर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है मईशत के लिए, तो आप तो रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हैं। आपने फर्स्ट टाइम MS का जब चार्ज संभाला, आपको किन किन मुश्किलात का, किन किन मामलात का, दुश्वारियों का सामना है यहाँ पर? सिर्फ ये था कि ये चीज़ों को एक स्ट्रीम में लाया जाए, एक लाइन में लाया जाए, एक सीक्वेंस में लाया जाए, ताकि हम अंडर द रूल्स भी काम करें और साथ साथ पेशेंट को भी फैसिलिटेट करें। देखिए प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक, हफ्ता रात 8:05 पर, सिर्फ कोहिनूर न्यूज पर। कोहिनूर फैशन हब, स्टाइल अप योर लाइफ। पाकिस्तान के तमाम लेडीज और जेंट्स ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। बुटीक स्टाइल, रूसी मलबूसात, लहंगा, गरारा, साड़ी, मैक्सी, 3-piece लॉन्ग प्रिंट, 3-piece चिकन, नर्सरी प्रिंट, जेंट्स वैरायटी और लेडीज अंडरगारमेंट्स के लिए अलग से फ्लोर मौजूद। एड्रेस नस्ट पियर्सोपम 65 अल्लामा इकबाल रोड, बड़ी शाहू, लाहौर। टेलीफोन नंबर 92-325-786-4400। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। आज के पहले कॉलर हैं, शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी मैं अली अहमद बात कर रहा हूँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। जी जोड़ों में बहुत दर्द होता है। 2 कुल आखिरी वाले और उसके बाद सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात हुमुल मुफ्लिहून तक अलिफ लाम मीम से। मेरा शौहर जो है ना, उन्होंने पहले मकान लिया तो अपने छोटे भाई के नाम करवा दिया। या अल्लाह, या नाफियो, या जामियो, या वकील हो। मैं मिसेस शकील बात कर रही हूँ। जी बताइएगा। मैं नई जगह मैंने घर बनाया 6-7 साल हो गए, लेकिन मुझे सुकून नहीं है। 4 जुमातुल मुबारक हर जुमा को वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे छुट्टों से, जहां पुलिस ने 14 साल लड़के पर FIR काट दी है। असल मनशियात फरोशों को पकड़ने के बजाय गांव से मवेशी बेचने आए लड़के का मनशियात के केस में चालान कर दिया। पुलिस की इस नाइंसाफी के खिलाफ शहर की ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे निसार रजा आराई वहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं। जी निसार, बताइएगा क्या सूरत हाल है और क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस टाइम पर जुडो शहर का मेन रोड ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ एक एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें कोली बरादरी, लगाई बरादरी और शहर के मुख्तलिफ कारोबारी हज़रात मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे इनका क्या कहना है और ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है। नंदलाल DSP जो हैं इसको ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो काम है मंशात, चोरी, बदमाशी, ये काम अमन इधर करना, चोरी बदमाशी को ख़त्म कराना है। ये मंशात फरोशों का जो है सरपरस्त है, ये वडेरों का कमदार है, इसको निकाला जाए। इस DSP को इसका काम यही है, यही कह रहा हूँ कि ये मंशात के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, चोरों के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, बदमाशों के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। इसका काम यही है मंशात चलवाना या सियासी लोगों की जो है कमदारी करना। इलेक्शन हो तो ठप्पे मारने के लिए फोर्स लेके पहुंच जाएगा, और किसी की ज़मीन पे नाजायज़ कब्जा करना हो तो उधर फोर्स लेके चला जाएगा। इसलिए हम पुरजोर मदद करते हैं कि पुलिस गर्दी नामंजूर। पुलिस थी वई करप्ट या कंहिं बि ॻाल्हि रुॻो करण लाइ तयारु कोन आहे। हाणे हिते वॾो ॾिसो ज़ुल्म जी इंतिहा लॻी पई आहे। जेके वॾा मंशियात फरोश आहिनि, जेके हिते जेको आहे सो चर्च पिया हलाइनि, जेके हिते जेको आहे सो 2100 अलाए कहिड़ा गुटका पिया विकिणनि, उन्हनि खे केरु बि कुझु बि करण लाइ तयारु न आहे। हीअ नंढनि ॿारनि 14 साल केबिन वारो को हिते मूं ॿुधो त को हिकिड़ो भुरगड़ी शरीफ़ माण्हू हुनखे झले विधऊं। हिते लाचारी छोकिरो 12 सालनि जो, हिते 13-14 सालनि जो हिकिड़ो लिगारी छोकिरो, उन्हनि खे झले ही खानापुरी, सिर्फ़ खानापुरी लॻी पई आहे। जी बाबा मथे असां मोकिले सघूं त असां हेतिरनि माण्हुनि खे कयो अथऊं, गिरफ़्तार कयो अथऊं, हेतिरियूं FIR
असांजे नंढड़े छोकिरे ते हिन ज़ुल्म कयो आहे, हुन झले जुॾे में आयो, चेलो विकण तो हुन गिरफ़्तार करे चैलान करे छॾियो। असां आलिया अख़्तारनि खे DIG IG सिंध सेशन कोर्ट हाई कोर्ट जज के साहिबान के गुज़ारिश है तो जल्द का जल्द असां इंसाफ़ कयो वञे ऐं DSP जुॾे खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे इनके गिरफ्तार कयो वञे। इन्होंने इस बात की बहुत ज़्यादा मजम्मत की कि 14 साल का तालिब इल्म था जो शहर किसी काम से आया था और पुलिस ने उसको पकड़ के सफीना और गुटके के केस में, मंशियात के केस में चलान कर दिया। इन्होंने DSP मिपोकास IG सिंध वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद ने हज 2023 के लिए सऊदी अरब के शानदार इंतजाम को सराहा। वो आज मक्का मुकरमा में सऊदी अरब के वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीक से मुलाकात कर रहे थे। सऊदी वज़ीर ने पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से आज ज़मीन को फराहम की जाने वाली इंतजामात और सहूलियात के बारे में आगाह किया। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि हमने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में अपने आज ज़मीन को बेहतरीन रिहाइश फराहम की है। हर हाजी की कुर्बानी के जानवर का बंदोबस्त करने के लिए 55,000 वापस किए हैं। उन्होंने सऊदी वजीर से दरख्वास्त की कि पाकिस्तान का हज कोटा बढ़ाया जाए। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट को आइंदा हज सीजन कराची और लाहौर तक तोसी दी जाए। मदीना में पाकिस्तान हाउस की मुंतकिली के मामले पर रोशनी डालते हुए वजीर ने कहा कि हमारे मिशन को मरकज़ ये नई इमारत फराहम की जानी चाहिए। सऊदी वजीर हज ने कहा कि हज अखराजात को कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। विजन 2030 के तहत रोड टू मक्का मंसूबे को पाकिस्तान के दीगर शहरों तक भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने पाक सऊदीया दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का भी इजहार किया। कराची के इलाके मलीर हाट में मुस्लिम लीग नून लेबर विंग सिंध के सदर मुनव्वर रजा की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के रहनुमाओं ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से नूर अमीन की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके मलिर हाट में मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के तहत सैयद मुनव्वर रजा के हवाले से ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून लेबर विंग कराची के सदर सैयद अखलाक हाशमी, चीफ ऑर्गेनाइजर खुर्शीद अली हजारवी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रिहाना राजा, सीनियर नायब सदर आसिफ अब्बासी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इजाज खान हजारवी ने शिरकत की। लेबर विंग कराची के सदर सैयद अखलाक हाशमी ने कहा कि मुनव्वर रजा हमें नहीं रहे, लेकिन मुनव्वर रजा का मिशन और नजरिया हमें मौजूद है। मुनव्वर रजा जैसे रहनुमा सदियों में पैदा होते हैं। मेरे सदर थे सिंध के वो, और यहाँ ये भी मैं बताता चलूँ साथियों को तमाम को कि मैं 85 में जब मियाँ साहब को ज्वाइन मैंने किया और उसके बाद कुछ हालात ऐसे पैदा हुए कि मैं घर जाकर बैठ गया, और उसमें जो ना जब शेख अब्दुल बारी साहब बैठे हुए हैं, इनके ज़रिए जनाब मुझे बुलाया गया और मुझे कराची डिवीज़न की ज़िम्मेदारी सैयद मुनव्वर रज़ा साहब ने दी, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने उनकी ये ज़िम्मेदारी कबूल की और बड़े अच्छे तरीके से चलाया है। क्योंकि आज वो मुस्लिम लीग का जो एक तनावर दरख्त जो बन चुका था, वो दरख्त जो है ना जिसके साए में पूरी मुस्लिम लीग आकर बैठती थी, और पता नहीं किन किन लोगों की वहाँ जो शिकायत थी, जो वाटर बोर्ड के मुलाजमीन के जो काम थे वो वहाँ से पूरे होते थे, आज वो हम में से नहीं है। मुनव्वर रज़ा साहब का ठीक है, और ज़ाती तौर पे तो मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन जितने मेरे सीनियर भाइयों ने उनकी तारीफ़ें की तो यकीनन वो एक बहुत बुलंद पाया इंसान थे, बहुत बुलंद लीडर थे कि जिनके पीछे इतने प्रोग्राम किए जा रहे हैं, तो खुदा उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे। और वो कराची के एक बड़े इदारे वाटर बोर्ड के जो है यूनियन के सदर भी रहे और मुस्तकिल रहे और उनके इलेक्शन भी जीतते रहे। उनकी ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि उन्होंने हमेशा जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के परचम को बुलंद रखा, और उसके उनकी ये जो जद्दोजहद है जो तवातर के साथ रही मियां नवाज शरीफ के साथ, और कैद व बंद में भी साथ रहे, बुरे वक्त में भी साथ रहे और मरते दम तक साथ रहे। उनका वो जो अभी जो हमारे साथी ने कहा कि वो जो है वो एक खानगाह थी मुस्लिम लीग के लोगों के लिए, जहाँ पर जिस किसी मुस्लिम लीग से ज़्यादती होता था, किसी किस्म होती थी, तो लोग वहाँ पर चले जाते थे। मजलिस के इख्तिताम पर मरहूम सैयद मुनव्वर। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के बलोचिस्तान के इलाके कपकपार में कार्रवाई, आला क्वालिटी की चर्च, क्रिस्टल आइस और हीरोइन की भारी खेप पकड़ी गई। कोस्ट गार्ड्स को खुफिया ज़राए से बॉर्डर के इलाके कपकपार में एक घर में भारी मिकदार में
मंशियात मौजूद होने की इतला मिली, जिस पर डायरेक्टर जनरल ने मुतल्लिका कमांडर, ऑफिसर्स और जवानों पर मुश्तमिल टीम तश्कील देने के अहकाम जारी किए। टीम ने ऑपरेशन के दौरान खाली घर से आला क्वालिटी की 129 मन से ज़ायद चर्स, 6.25 मन क्रिस्टल आइस और 53 किलोग्राम हीरोइन बरामद कर ली है, जिसकी मालियत बैनुल-अक़वामी मार्केट में $136 मिलियन के लगभग है। मनशियात बैरून मुल्क स्मगल करने के लिए छुपाई गई थी। कोस्ट गार्ड्स ने मनशियात कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शरकपुर शरीफ में इंतजामिया की गफलत से मवेशी मंडी वीरान पड़ी है। मंडी में कुर्बानी की जानवर मौजूद नहीं, जिसकी वजह से खरीदार परेशान हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे फजल कयूम खान से। जी फजल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से लगाई गई मवेशी मंडी शरकपुर जो ईद कुर्बान पे लगाई जाती है। हर साल की तरह मवेशी मंडी तो लगा दी गई, लेकिन महंगाई का ऐसा फैक्टर चल रहा है कि ना यहाँ व्यापारी है ना यहाँ कस्टमर है। आप देख सकते हैं कि सारी मवेशी मंडी खाली पड़ी है और जो दफातर के कैंप भी हैं वो भी खाली हैं। सिर्फ वेटरनरी हॉस्पिटल का कैंप और म्यूनसिपल कमेटी के कैंप में कुछ अफराद मौजूद हैं और मंडी में फुकदान जो है चीज़ों का, वो ना यहाँ कोई पानी पीने का और जानवरों के लिए किसी किस्म का भी कोई इंतज़ामात भी नहीं है। और सुनने में आया है कि मवेशी मंडी में शाम 6 बजे के बाद चंद जानवर आते हैं और वो भी चक्कर लगाकर वापस चले जाते हैं और आवाम यही देख रही है कि या तो कोई महंगाई कम हो जाए या उन्हें तनख्वाहें मिल जाएं, जिससे वो ईद कुर्बान की आखिरी रात तक कोई ख़रीदारी कर सके और अपने जानवर को सुन्नत इब्राहिम। आपको बताएं कि डिस्कोट में टीटू और मीटू नामी 2 बकरों की धूम है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए मालिक ने बाप की रिवायात को बरकरार रखते हुए इन बकरों को पाला है और इनका नाम टीटू और मीटू रखा है। मालिक हर साल बकरे कुर्बानी के लिए पालता है और उनके नाम भी बड़े शौक से रखता है। नाम के साथ साथ उनकी खुराक भी एक आम जानवर से बहुत ज्यादा है। मालिक का कहना है कि उन बकरों को घी, बनोला दूध, मक्खन और चने की दाल दूध में डालकर खिलाई जाती है। दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। जी ये अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो से कुर्बानी के जानवर, एक का नाम टीटू, एक का नाम मिंटू रखा है हमने। ये हमने खुद पाले माशाल्लाह। इसे खाने में जो से देते हैं, दाल देते हैं, ये खाल होगी, ये साथ सूखी रोटी होगी, साथ ये मक्खन वगैरह, मक्खन हो गया, बादाम वगैरह, ये हम साथ इसके देते हैं खुराक। ये दादा अबू के दौर से चलता है, ये वो पालते थे शौक से और अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए शौक है, वो वहाँ दादा अबू के टाइम से चलता आ रहा है। ये अब ये माशाल्लाह पापा ने पाले है और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए, सुन्नत इब्राहिम जो से अदा करने के लिए इन्हें ज़िबा इंशाल्लाह किया जाएगा। जी जी, हम बालकर का कहना है जी, जो दोनों टीटू मीटू हमने बड़े शौक से पाले पे जी। पहले मेरे दादा जान से वो बड़े शौक से बकरे पालते थे और उनके नाम रखते थे। अब हमने भी मेरे वालिद साहब हैं जवेद मुगल साहब, उन्होंने ये बकरे पाले हैं और उन्होंने बड़े शौक से इनका नाम भी रखा है। उनके बेटों ने और उनके वालिद साहब ने इनका नाम टीटू और मीटू रखा है। अगर मार्केट में इनका रेट लगाया जाए तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए के बकरे हैं और कद में देखने में बहुत ही खूबसूरत और लाड़ प्यार करने में किसी को भी तंग करते ना मारते ही हैं। और दूसरा जो इनका कहना कि इसको हमने बड़े शौक से पाला है, तो हम दाल खिलाते हैं, इसको हमने सूखी रोटी खिलाई है, खाल खिलाई है, बरनाला खिलाया और दूध में दाल भिगोकर इसको खिलाते हैं। जो डेली बेस की खुराक है और इनको बड़े शौक से हम पाला है। और दूसरा इनकी रहायश के लिए हमने स्पेशल पंखा लगाया हुआ है जो कि इनकी ठंडक रखता है। इनके लिए हमने बेहतरीन बैठने उठने का इंतज़ाम किया है ताकि ये अल्लाह की राह में हमने ज़िबा करने और इनको बड़े शौक और ज़ौक़ के साथ हमने पाला है और रखा हुआ है। और हमारी वज़ारत मज़हबी अमूर ने पाकिस्तानी आज़मीन हज की मदद और सहूलत के लिए मीना में मरकज़ी कंट्रोल ऑफिस कायम कर दिया है। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक कंट्रोल रूम में मालूमात और राबते को यकीनी बनाने के लिए एक इंफॉर्मेशन सेल कायम कर दिया जाएगा। इसके अलावा गुमशुदा हाजियों या गुमशुदा सामान की तलाश में मदद के लिए एक खुसूसी सेल भी कायम किया गया है। निजी तौर पर हज के लिए जाने वाले आज़मीन की निगरानी और उनके मसाइल के हल के लिए भी अलहदा मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया है।
اس کے علاوہ مختلف دیگر خصوصی یونٹس، ویل چیئر ڈیسک وغیرہ حاجیوں کی سہولت کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کا بوجھ اب تعلیم یافتہ نوجوانوں نے اٹھانا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس نوجوانوں نے ملک کو مشکلات سے نکالنا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے شہدائے APS یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نوشہرہ کے پہلے کانوکیشن سے بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ والدین کی مشکلات کا خاتمہ اور ان کے چہروں پر خوشی لانا بھی نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اپنا مستقبل سنوارنے کے ساتھ والدین کا سہارا بھی بننا ہے۔ والدین اور اساتذہ کی محنتوں کی بدولت آج آپ کے ہاتھوں میں انجینئرنگ کی ڈگری ہے۔ گزشتہ 7 ماہ میں تمام یونیورسٹیوں کے کانوکیشن میں انتہائی خوشی سے شرکت کی۔ بطور چانسلر میری خواہش ہے کہ یونیورسٹیوں کو تمام سہولیات فراہم کروں۔ یونیورسٹیوں کا وکیل بن کر صوبائی حکومت سے یونیورسٹیوں کو سہولت فراہمی کے لیے کردار ادا کر رہا ہوں۔ خوشی ہوئی ہے کہ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نوشہرہ کے نوجوانوں کی بہترین کردار سازی کی گئی ہے۔ کوٹ غلام محمد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ BISP کے تحت ملنے والا وظیفہ کرپشن کی نظر ہو گیا۔ رقم کی تقسیم میں بڑے پیمانے پر گھپلے سامنے آئے ہیں۔ 9,000 کے وظیفے پر 1,500 روپے سے لے کر 2,000 روپے تک کی کٹوتی کی جا رہی ہے، جس پر انتظامیہ کی خاموشی سوالیہ نشان بن گئی۔ ذرائع کے مطابق بہتی گنگا میں ڈیوائس مافیا اور کچھ بااثر لوگ ہاتھ دھونے میں مصروف عمل ہیں۔ ڈیوائس والوں کے مطابق کچھ لوگ ہم سے روز کی بنیاد پر بھتہ لے رہے ہیں۔ ان کے نام اور تفصیل ادارے ہم سے لے رہے ہیں۔ اور اب کچھ بات موسم کی تو غازی میں موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ تاہم دوسری جانب واپڈا انتظامیہ کی نااہلی سے رات سے بجلی بند ہے، جس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے تحصیل رپورٹر محمد علی مشوانی سے۔ جی محمد علی، بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں کی؟ جی ہاں، میں اس وقت موجود ہوں گدوالیہ میں۔ گزشتہ چند روز سے علاقے میں شدید گرمی تھی، جس کی وجہ سے کئی لوگ بیمار بھی ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات سے 12 رحمت کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں کمی ہو چکی ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ رات بھر سے بجلی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی بند ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے لوگ شدید مشکلات کا سامنا ہے اور کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو رحمت کر دی، لیکن دوسری طرف زحمت بھی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے بجلی بند ہو چکی ہے۔ جی عید قربان کی آمد آمد راولپنڈی کے مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانور کی خرید و فروخت جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بازار میں چھریوں اور ٹوکے کے کاروبار بھی عروج پر پہنچ چکے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے MA راج سے۔ جی راج، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ صاحب جو چھریوں کا کاروبار کرتے ہیں اور چھری چلانا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کاروبار کے کیا حالات ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بڑے زبردست طریقے سے آپ چھریاں چلا رہے ہیں، ٹوکے چلا رہے ہیں، یہ کاروبار کب شروع کیا اور آج کے کیا حالات ہیں؟ یہ ہمارا بائی کام ہے جی، شروع سے ہی ہم کر رہے ہیں۔ یہ کتنا عرصہ ہو گیا یہ کاروبار میں؟ یہ سن 75 سے اسکول چھوڑ کے ہم بیٹھے تھے ادھر۔ اور ابھی آج کل کیا حالات ہیں، جو کاروبار ہے، جو ملکی حالات چل رہے ہیں، اس میں کاروبار کے کیا حالات ہیں؟ کاروبار آج اتوار ہے جی، کوئی کام ہلا ہے، کوئی نظر ہے۔ ویسے تو ہم ادھر فارغ بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ عید نزدیک ہے، سر پہ بہت کام تھا، لیکن آج کل کام نہیں ہے اتنا اس حساب سے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال کی بنسبت اس سال کام کے کیا حالات ہیں؟ کم ہے، بہت کم ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جس طرح ملکی صورتحال ہے یا کام کم ہے، تو آپ کا جو گزر بسر ہے کیا وہ اس میں صحیح طریقے سے ہو رہا ہے؟ نہیں جی، گزر بسر بس اللہ ہی ہے جو پورے کر دیتے ہیں، یہ سے ابھی تو بہت مشکل ہو گیا ویسے تو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں کس چیز سے فرق پڑا ہے اور کس طرح بہتر ہو سکتا ہے؟ سارا ملک آپ کو سامنے ہے، مہنگائی سے ہی ہے نا، اور کیا ہے اس میں؟ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، لوگوں کی خرید سے باہر ہو گئی ہے۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے ارباب اختیار کو؟ ہم نے کیا پیغام دینا ہے جی، اپنی لڑائیاں چھوڑے، عوام کے جس کی ووٹ لی ہے اس کا خیال کریں، جس کا ووٹ لیا ہے خیال اس کا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मनासिक हज का आगाज़ हो गया। ज़मीन हज की नमाज ज़ोहर से पहले मीना आमद, मीना में खैमों की बस्ती बसा दी गई। आज की रात क़याम भी मीना में ही होगा। आज ज़मीन 9 ज़िलहज की सुबह हज के सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफा के लिए अरफात रवाना होंगे। सऊदी हुकाम के मुताबिक 90 ममालिक से 1300 शाही मेहमान भी इस साल फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। आज़मीन 9 ज़िलहज की सुबह हज के सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफा के लिए अरफात रवाना होंगे। आज़मीन की हिफाजत के लिए सऊदी महकमा शहरी दिफा ने गैस सिलेंडर रखने की सख्ती से मुमानत की है। 90 ममालिक से 1300 शाही मेहमान आज़मीन भी इस साल फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। सऊदी हुकाम के मुताबिक जुमे के दिन तक दुनिया भर से 1.6 मिलियन आज़मीन सऊदी अरब पहुँचे थे। सऊदी अरब के अंदर से ही हज अदा करने के लिए हरम मक्की पहुँचने वालों की तादाद का ऐलान ताहाल नहीं किया गया। सऊदी हुकाम को तवक्को है कि रवा बरस 160 मुल्कों से 20 लाख से ज्यादा आज़मीन हज अदा करेंगे। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी हज की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर सऊदी हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक और कौंसल जनरल खालिद मजीद ने सदर मुमलिकत का खैर मकदम किया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने एयरपोर्ट लाउंज में डिप्टी गवर्नर मक्का बदर बिन सुल्तान से मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हज की सआदत के लिए सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक और कौंसल जनरल खालिद मजीद ने खैर मकदम किया। सुप्रीम कोर्ट से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच एक बार फिर टूट गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को 7 रुकनी बेंच से अलग कर लिया। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच एक बार फिर टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को 7 रुकनी बेंच से अलग कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक दरख्वास्त गुजार जस्टिस मंसूर अली शाह के रिश्तेदार हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इसलिए उनके कंडक्ट पर असर पड़ सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मैं अपना कंडक्ट अच्छी तरह जानता हूँ, कोई एक उंगली भी उठा दे तो फिर मैं कभी इस बेंच का हिस्सा नहीं रहता। चीफ जस्टिस ने दोबारा समाअत के लिए 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल है। समाअत के दोबारा आगाज पर चेयरमैन पीटीआई के वकील हामिद खान रोस्ट्रम पर आए और अदालत से मुखातिब होते हुए कहा कि हमारी दरख्वास्त पर नंबर नहीं लगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले पर बाद में आएंगे, अभी हम एक सीट बैग से रिकवर करके आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ दलाइल के बजाय दीगर हरबे आजमाए जा रहे हैं। आपने दरख्वास्त में भी मुख्तलिफ इस्तदाएं कर रखी हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि अपने पहले दिन के सवाल पर जाऊंगी कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D का इतलाक किस पर होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि अफवाज के अफसरान का भी मिलिट्री कोर्स में कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बरतानिया और अमरीका में मखसूस हालात में फौजी अफसरान के फौजी अदालतों में ट्रायल होते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि FPLE केस तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स के ट्रायल पर था। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया क्या अभी किसी का ट्रायल शुरू हुआ है। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि अभी किसी का ट्रायल नहीं शुरू हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप फिर मफरूज़ों पर बात ना करें कि ट्रायल होगा तो यूं होगा, ऐसे तो कल मिलिट्री अफसरान के ट्रायल पर भी बात की जाएगी। हमारे पास कल आखिरी वर्किंग डे है, मुतल्लिका बात ही करें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप आर्टिकल 175 की शिक 3 को बुनियादी इंसानी हकूक से कैसे जोड़ रहे हैं। इसका इतलाक तो फिर फौजी अदालतों पर भी होगा। 175 की शिक 3 का यहाँ क्या ताल्लुक है। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा से मुकालमे में कहा रिमार्क्स ये कि आप जो बात कर रहे हैं वो फौजियों के हक में है की जाती है। हम बहुत सादा लोग हैं, हमें सादा अल्फाज में बताएं। जो बातें यहाँ कर रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर करें। हमें यही बताएं क्या सिविलियन को बुनियादी हकूक से महरूम किया जा सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि हम मिलिट्री कोर्ट्स को कैसे कहें कि वो अदालतें नहीं हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ऐसी कई अदालतें और ट्रिब्यूनल हैं जिनका आर्टिकल 175 से ताल्लुक नहीं।
چیف جسٹس نے استفسار کیا کیا ملٹری کورٹس کے فیصلے چیلنج نہیں ہو سکتے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آرمی چیف کے سامنے یا ان کی بنائی کمیٹی کے سامنے فیصلے چیلنج ہو سکتے ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ ایک متوازی نظام ہے جسے عدالت نہیں کہہ سکتے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ امریکی قانون ان عام شہریوں کے بارے میں کیا کہتا ہے جو ریاست کے خلاف ڈٹ جائیں۔ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ امریکہ میں عام شہریوں کی غیر ریاستی سرگرمیوں پر بھی ٹرائل سول عدالتوں میں ہی ہوتا ہے۔ پنجاب، لاہور سمیت مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش نے شیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ شکرگڑھ، پسرور، شیخوپورہ میں آسمانی بجلی گرنے کے مختلف واقعات میں 11 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہوئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اب تک 59 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ سید پور 45، گولڑا 53، بوکڑا 55، پی ایم ڈی ایچ 8 میں 48، شمس آباد 49، چکلالہ کے مقام پر 59 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نالا لئی میں کٹاریہ کے مقام پر پانی کی سطح 10 فٹ جبکہ گوال منڈی پل پر 8 فٹ تک پہنچ چکی ہے۔ ادھر کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ طوفانی بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ کئی نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ دکی میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک بھائی جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ کوئٹہ اور اطراف میں ہلکی اور تیز بارش کے بعد موسم انتہائی خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ کے علاوہ بلوچستان کے دیگر شہروں میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی ہے۔ خزران میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ دوسری جانب آزاد کشمیر میں بھی طوفانی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی جس کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ لاہور کے مختلف علاقوں ایبٹ روڈ، ڈیوس روڈ، عبدالکریم روڈ، کینال روڈ، شملہ پہاڑی اور ملحقہ علاقوں میں بادل برسے۔ گھڑی شاہو، شالیمار اور باغبان پورہ سمیت دیگر علاقوں میں بھی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا پانی بھی کھڑا ہو گیا جس کے باعث ٹریفک اور بجلی کا نظام شدید متاثر ہے اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو انتہائی افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ لاہور میں ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 3 بہن بھائی جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق کہنا کے قریب سوئے آسل روڈ پر حادثہ پیش آیا جہاں 2 تیز رفتار موٹر سائیکلیں سڑک کنارے کھڑی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئیں۔ حادثے کے نتیجے میں 3 بہن بھائی جان کی بازی ہار گئے جبکہ ماں اور 2 بیٹے زخمی ہو گئے جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی شناخت احمد، حسن اور فضا کے ناموں سے ہوئی ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ لاہور میں ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 3 بہن بھائی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق کہنا کے قریب سوئے آسل روڈ پر حادثہ پیش آیا جہاں 2 تیز رفتار موٹر سائیکلیں سڑک کنارے کھڑی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 3 بہن بھائی موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ ماں اور بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے نے پی ٹی آئی صدر چودھری پرویز الہی کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ پرویز الہی سے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں تفتیش درکار ہے۔ ایف آئی اے کی ٹیم چودھری پرویز الہی کو کیمپ جیل سے لے کر عدالت روانہ ہو گئی۔ ایف آئی اے نے پرویز الہی کو ضلع کچہری پیش کر دیا۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ پرویز الہی کے مبینہ فرنٹ مین محمد زمان کے بارے میں پوچھ گچھ کرنی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کے صاحبزادے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خصوصی طیارے پر کراچی سے دبئی پہنچ گئے۔ عید الاضحیٰ دبئی میں گزاریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری عید کے بعد وطن واپس آئیں گے۔ دونوں کی دبئی میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات ہونے کا بھی امکان ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اپنا دورہ چین منسوخ کر کے دبئی گئے ہیں۔ انہوں نے 26 جون کو 3 روزہ دورے پر چین کے شہر تیانجن جانا تھا۔ شیڈیولنگ کے مسائل کے باعث دورہ چین ملتوی کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری دبئی کے بعد سرکاری دورے پر چین روانہ ہوں گے۔ تو وہیں دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کی راہ میں حائل قانونی پیچیدگیوں کے حوالے سے مشاورت مکمل کر لی گئی ہے۔
पार्टी ज़राए के मुताबिक लीगल टीम ने वापसी के हवाले से हिकमत अमली तैयार करके नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। ईद के फौरी बाद वकालतनामे नवाज शरीफ को लंदन भिजवाए जाएंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत दायर की जाएगी। ज़राए का मजीद कहना है कि नवाज शरीफ हिफाजती जमानत मिलने पर लंदन से पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करेंगे। हिफाजती जमानत के दौरान ही सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला कराने की कोशिश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक अगर जेल जाना कानूनन ज़रूरी हुआ तो नवाज शरीफ के घर को सब जेल करार दे दिया जाएगा। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में नाअहली की मुद्दत 5 साल तक महदूद करने के बिल की मंजूरी के साथ ही वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश कर दी है। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बिल की मंजूरी के बाद इसहाक डार ने नवाज शरीफ को फ़ोन किया। इस मौका पर इसहाक डार की तरफ से कायद मुस्लिम लीग नून को तरक्की पर मुबारकबाद दी गई। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का तारीख बिल आज बाकायदा किताब का हिस्सा बन जाएगा। PIA इंतजामिया ने पायलट्स के फ्लाइंग अलाउंस में 35% तक इजाफे का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ्लाइंग अलाउंस के हुसूल के लिए कम अज़ कम 50 घंटे तैयारा उड़ाना लाजमी करार दे दिया गया और 10 साल की सर्विस पर पायलट्स के फ्लाइंग अलाउंस में 35% इजाफा होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 साल सर्विस वाले के पायलट्स के फ्लाइंग अलाउंस में 30% इजाफा, जबकि 30 साल तक सर्विस करने वाले पायलट्स के फ्लाइंग अलाउंस में 25% इजाफा होगा। 30 साल से ज़्यादा सर्विस देने वाले पायलट्स के फ्लाइंग अलाउंस में 20% तक इजाफा मुतवक्किल। ड्यूटी से इनकार और बगैर वजह की छुट्टी करने वाले पायलट्स को फ्लाइंग अलाउंस नहीं मिलेगा। 60 घंटे फ्लाइंग पर PIA के पायलट्स को 150% फी घंटे के हिसाब से अलाउंस मिलेगा, जबकि 70 घंटे फ्लाइंग करने वाले पायलट्स को फी घंटा 200% के हिसाब से फ्लाइंग अलाउंस मिलेगा। 10 साल की सर्विस पर पायलट्स के फ्लाइंग अलाउंस में 35% इजाफा होगा। और अब कुछ बात करेंगे डॉलर की। तो इंटरबैंक में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर ही डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 36 पैसे इजाफा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये 10 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी देखी गई है। स्टॉक मार्केट में 1016 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 41,082 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच चुका है। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के यूथ प्रोग्राम से स्पोर्ट्स को फ़रोग़ मिलेगा। गवर्नर सिंध का बयान, कहा कि कराची में छुपे टैलेंट को सामने लाने में ये प्रोग्राम बहुत अहमियत का हामिल होगा। HEC तालीम के साथ स्पोर्ट्स में भी काम कर रही है। हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन कई सालों से हॉकी बहुत पीछे चली गई है। कराची में टैलेंट है, इससे मौका देने की ज़रूरत है। गवर्नर के मनसब पर जब से बैठा हूँ, खेल मेरी अव्वली तरजीहात में शामिल है, ऐसा उनका कहना था। कामरान खान टेसूरी ने मजीद कहा कि जब तक मैदान आबाद नहीं होंगे हम हर शोबे में दूर चले जाएंगे। कराची गेम्स का इन्नेकाद हर साल कराने की कोशिश करूंगा। हॉकी लीग में शरीक तमाम खिलाड़ियों को गवर्नर हाउस में शाया दूंगा। खिलाड़ियों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं, मेहनत जारी रखें। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में इलाकाई खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि अपालू स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब लाहौर के वफ्द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। वफ्द ने 9 मई के सानहा पर गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि ये बहुत तकलीफ दे लम्हात हैं। ये घर बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब होने के बायस काबिल कदर था। उनका कहना था कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये तखरीब कारी की गई।
शरपसंद और उनके अलाकार याद रखें कि ऐसी साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकते। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। अगर किसी ने मैली आंख से भी देखने की जुर्रत की तो उसकी आंख निकाल देंगे। 9 मई एक कौमी सानहा है। हम मुतालबा करते हैं कि जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात की यकीन दहानी होनी चाहिए कि कोई भी शरपसंद, सहूलतकार और उनका मास्टरमाइंड सजा से नहीं बचना चाहिए। खबर शामिल करेंगे शोरकोट से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में ईद उल अज़हा के सिलसिले में तहसील अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें तमाम मुकातिबे फ़िक्र के उलमाए कराम, अमन कमेटी के मेंबरान, DSP शोरकोट स्पेशल ब्रांच, मीडिया नुमाइंदगान, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर सिक्योरिटी और अमनो अमान के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर वहाँ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात इनसे लेंगे। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस शोरकोट में। आपको बताता चलूँ कि आज ईद उल अज़हा के हवाले से यहाँ पर अमन कमेटी शोरकोट की तहसील की जो स्पेशल मीटिंग की गई है ताकि अमन अमान को बरकरार रखा जाए, जिसमें तमाम मुकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम ने यहाँ पर मीटिंग में वीडियो अटेंड भी की और मुख्तलिफ अहकाम भी जारी किए। मेरे साथ इसी साथ मौजूद हैं। सर बताइए कि आज आपका आपस में स्पेशल अमन कमेटी की मीटिंग हुई है, जहाँ पर मौलाना समावी सियाल साहब और बाकी तमाम उलमाए के मौलाना जैद साहब, मौलाना मुफ्ती नसीर साहब भी शामिल हैं, DSP साहब भी शामिल हैं। क्या अहकाम जारी किए गए सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज तहसील शोरकोट के तमाम मुअस्सिस जो अमन कमेटी के मेंबरान हैं तमाम ने शिरकत की है यहाँ पे। और अभी जो ईद उल अज़हा का मौका है और उसमें भी काफ़ी सारे जो इंतज़ामात के हवाले से मुशावरत हुई है, और इसके बाद यहाँ पे उर्स होता है और उसके बाद मुहर्रमुल हराम के हवाले से काफ़ी मुशावरत हुई है और बहुत सारे जो शहर के इश्यूज़ हैं उन पे बात हुई है। तो मैं समझता हूँ ये अमन कमेटी का जो इजलास है ये शहर के अमन को बरकरार रखने के लिए और शहर की तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मौलाना समावी सियाल साहब, सर आप बताएंगे आज भी आप मीटिंग में शामिल हुए हैं, आप क्या बताएंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा और आशूरा शरीफ और इस हवाले से यहाँ पे मामला डिस्कस किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना जाहिद अनवर साहब, मुफ्ती नसीर अहमद साहब और इमरान रज़ा साहब हैं, DSP साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब और ये फ़कीर, तो एक बेहतरीन टीम है जो इस शहर की तरक्की के लिए, इसमें अमन व अमान की बेहतरी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इंशाअल्लाह शहर की तरक्की के लिए, अमन व अमान के लिए और मुल्क की इस्तेहकाम के लिए हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि यहाँ पर मुल्क की सतह पर जो मामलात होते हैं उनको हल करने के लिए और यहाँ पर जो अमन कमेटी के मेंबरान हैं वो अपनी शाना बशाना अपनी खिदमात पेश करते हैं। पहले के हालात की तरह अभी भी इस मरतबा ईद उल अज़हा दिन हो या यौम आशूरा आ रहा है, उसके लिए भरपूर तरीके के साथ ताउन किया जाएगा, इंतजामिया के साथ भी ताउन किया जाएगा। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। चिश्तिया में बड़ी तादाद में शहरियों ने जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया, मगर पिछले साल की निस्बत इस साल कीमत ज्यादा होने की वजह से व्यापारी और खरीदार दोनों परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मवेशी मंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बहुत शुक्र है। ईद उल अज़हा करीब आते ही चिश्तियाँ की मवेशी मंडियों में बड़ी तादाद में रश जो है वो बढ़ गया है। फरज़ानदान इस्लाम ने आज सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए बड़ी तादाद में मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं, जहाँ पर वो अपनी मनपसंद के जानवर जो है वो तलाश करते नज़र आ रहे हैं। महंगाई ज़्यादा होने की वजह से अगर बात करें तो जो गरीब तबका लोग हैं वो अपनी हैसियत के मुताबिक यहाँ पर जानवर तलाश कर रहे हैं। मैं इस वक्त चिश्तियाँ की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर कुछ ख़रीदार मौजूद हैं जो कि अपने कुर्बानी अदा करने के लिए वो जानवर ख़रीदने के लिए उनसे बात करेंगे। सर, जानवर खरीदने के लिए आए हैं तो इस दफ़ा आप कौन सा जानवर कुर्बानी के लिए ले रहे हैं? बड़ा भी और छोटा भी ले रहे हैं। बड़ा मेरा है 1.5 पौने 2 लाख का, 1.25 लाख का, तो बकरा जो मिलता 3500 40,000 का, 60,000 का, 70,000 का। इसलिए बहुत महंगाई है तो इस वजह से करके ना ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा माल। महंगाई ज़्यादा है फिर भी आपने सुन्नत इब्राहिमी को अदा लाजमन करना है, जानवर यहाँ से खरीद कर जाएंगे? इंशाल्लाह करना, लेके जाएंगे। हाँ। पिछले साल की निस्बत इस साल कीमतों में किस कदर इजाफा हुआ है? 15%, 15,000 रुपये पिछले साल से ज़्यादा है। हाँ जी।
जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर शहरी की बात सुनी, महंगाई का शिकवा करते भी नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई बेशक ज़्यादा है लेकिन सुन्नत इब्राहिमी को हमने लाजमन अदा करना है। हम यहाँ पर मवेशी मंडी में आए हैं लेकिन हम जानवर जो है वो ख़रीद कर जाएंगे। अगर बात करें तो महंगाई का शिकवा जो है व्यापारी और ख़रीदार जो है वो भी करते नज़र आ रहे हैं। अगर मवेशी मंडी की सूरत हाल के वाले से अगर हम आपको बताते चलें तो यहाँ पर बिजली का इंतज़ाम ना होने की वजह से यहाँ पर जो व्यापारी हज़रात दीगर शहरों से यहाँ पर आए हुए हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि लाइट ना होने की वजह से खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई भी हादसा जो है वो हालात ख़राब होने की वजह से रूनुमा हो सकता है। तो इंतज़ाम खबर शामिल करेंगे एबटाबाद से, जहां ट्रैफिक पुलिस के अहलकार मरकजी शाहराह रेशम के दरमियान गाड़ियों को रोककर जुर्माने करने लगे। गाड़ियों की तवील कतारें मामूल बन गई जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अबैदुर्रहमान सलेमानी से। जो उबैद, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मरकजी शहर रेशम एबटाबाद पर हम मौजूद हैं जहां पर मिसाली पुलिस के पीके पुलिस ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक गैर कानूनी कदम जो कि ट्रैफिक पुलिस के जो कवानीन हैं उनकी अपनी खिलाफ वर्जी की जा रही है। यहाँ सड़क पर कब्जा किया जा चुका है। इस वक्त तकरीबन 6 से 6.5 फुट जो जगह है वो इस तरह सड़क पर गाड़ियाँ चलने से कासर है। सड़क को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। ट्रैफिक कवानीन की जहाँ पर वायलेशन की जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रैफिक पुलिस जब भी गाड़ियों का चलान करती है तो सड़क के दरमियान में गाड़ियों को खड़ा करके चलान करती है जिसकी वजह से तवील कतारें यहाँ पर नजर आती हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या इससे अवाम को कुछ फ़ायदा है, खुशी है, क्या है, किस लिए कुछ किया जा रहा है। देखा तो सक्से सामने सारा कुछ ये कंस्ट्रक्शन वाले उन्हें काम किया यकीन सामने बस ही लोगों को तकलीफ है कदर ट्रैफिक का नहीं छोड़ सके गड्डियाँ ना रोले बस यकीन तो सामने सब कुछ नजर आ रहे। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इसका कुछ अवाम को फ़ायदा है तो कोई फ़ायदा भाई, फ़ायदा आप देख रहे हो आपके सामने जैसा रोड है इसको देख लो, इससे ऐसा होना चाहिए। हालांकि इस पर ठीक ठाक खर्च हुआ अगले गवर्नमेंट का, और आगे से जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं जो मतलब ठेकेदारान हैं वो भाई ये हिसाब है बस दबा कोशिश हर जगह पे। भाई साहब ये जो है ना बहुत जुल्म नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आगे रास्ता रोड जो है तंग है और ऊपर से काफ़ी तंग हो गया है, तो इसके हम भरपूर मजम्मत करते हैं। इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्यों जब चालान करते हैं तो रोड के दरमियान में खड़ी होकर उसके बाद करते हैं, पीछे सारी गाड़ियाँ जो बंद हो जाती हैं। तो इस तरह मरीज बेचारे आते हैं वो भी इसी तरह ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। तो बिल्कुल मरीज आते हैं और कई किस्म के बुजुर्ग आते हैं, सबको तकलीफ होती है, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जी बिल्कुल जी, काफ़ी शहरियों से भी हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि जब भी से आते हैं मरीज शहरी या कोई भी आता है यहाँ पर तो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, बच्चे स्कूल के ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। तो ये जो गैर कानूनी इक़दाम है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किया गया इसको फौरी तौर पर यहाँ से ख़त्म किया जाए और ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बेहतर किया जाए। तो वहीं दूसरी जानिब हाड़ी में ईद कुर्बान करीब आते ही दुकानों पर कीकड़ की लकड़ी से बनी हुई मुंडियां सज गई। छुरियां टोके बेचने और तेज करने वालों ने दुकानें सजा ली। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां आमिर कुरैशी से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए और मुसलमान अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त के बाद जो दूसरा मरहला होता है वो छुरियाँ तेज़ करवाना, टोके और किकरी की लकड़ी की मुड़ियाँ वगैरह। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत इस बार लोग सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए उनके में कैसा जज्बा देखा जा रहा है, और आपको के हवाले से बताइएगा कि उनमें कैसा जोश व खरोश है, और रश के हैसियत बताइएगा। जी पिछली बार से तो काफ़ी कम है, पिछली बार तो काफ़ी रश था, लेकिन इस बार महंगाई की वजह से आवाम में जोश थोड़ा कम नज़र आ रहा है। लेकिन देखते हैं, अभी 2-3 दिन पड़े हैं, आपके सामने मार्केट के हालात बहुत नाजुक है। महंगाई है नहीं, गाहक आते हैं, बहस बहुत करते हैं, काम थोड़ा करवाते हैं, लेकिन सारा सामान लगा हुआ है। महंगाई की वजह से जो चीज़ पिछले साल 300 की थी इस साल 600 की है, इतनी महंगाई में फ़र्क आया है। बाकी अल्लाह मुल्क के अदाब बस। हाँ जी बिल्कुल, दुकानदार का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस बार जो ग्राहकों का रश बहुत कम दिखाई दे रहा है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी 2-3 दिन बाकी पड़े हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्राहक बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर मज़ीद इस बार मैंने शहरियों से पीपल्स लेबर ब्यूरो मेडिकल कमेटी कराची डिवीजन के चीफ ऑर्गेनाइजर, डेप्यूटी चीफ ऑर्गेनाइजर, कमेटी मेंबरान के सदर असलम समूह से मुशावरत हुई। अब्बासी शहीद अस्पताल की बाकायदा कमेटी का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए देखिए नूरुल अमीन की ये रिपोर्ट।
पीपल्स लेबर ब्यूरो मेडिकल कमेटी कराची डिवीजन के चीफ ऑर्गेनाइजर और डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबरान ने पीपल लेबर ब्यूरो कराची डिवीजन के सदर असलम समो साहब से बेमी मुशावरत से अब्यासी शहीद अस्पताल की बाकायदा कमेटी का ऐलान कर दिया है। ये कमेटी मुलाजमीन के मसाइल और मरीजों पर काम करेगी और हर माह पीपल लेबर ब्यूरो मेडिकल कमेटी को रिपोर्ट देगी। कमेटी के नाम ये है: सदर मोहम्मद राना अफजल, सीनियर नायब सदर इकबाल कादरी, नायब सदर तस्लीम बानो, नायब सदर अली पटनी, नायब सदर शहबाज शाह, नायब सदर मुनव्वर सुल्ताना, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शाहिद अली, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एसएम इजाज, डिप्टी इंफॉर्मेशन कामरान शाह, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद शकील, डिप्टी फाइनेंस आबिद हमीद, ऑफिस सेक्रेटरी सरताज, ऑफिस सेक्रेटरी सैयद अफजल, ऑफिस सेक्रेटरी नवीद इमाम, कमेटी मेंबर नजर, कमेटी मेंबर निजामुद्दीन, कमेटी मेंबर अनवार अली, कमेटी मेंबर जुनैद, कमेटी मेंबर शाहनवाज, कमेटी मेंबर मोहम्मद मजहर शामिल है। तो सबसे पहले तो ये है कि अब्बासी शहीद अस्पताल में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सादगिरह के हवाले से जो प्रोग्राम है, आज 70वीं सालगिरह उनकी थी, हम उनको हमेशा याद करते हैं और करते रहेंगे और ना कभी भूलें ना भूलेंगे। तो उस हवाले से आज ये प्रोग्राम था और उसमें असलम सम्मो भाई जो हमारे डिवीज़न कराची डिवीज़न के सदर हैं लेबर ब्यूरो के, और मैं जो एज अ चीफ ऑर्गेनाइज़र काम कर रहा हूँ पीपल लेबर ब्यूरो मेडिकल कमेटी कराची डिवीज़न का चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ। तो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी है मुझ पर और उनकी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए हमने तकरीबन 13 सब कमेटियाँ मुख्तलिफ टीएमसी और डीएमसी के हॉस्पिटल में हमने बनाई हैं और इंशाल्लाह और भी हमारा काम जारी है। तो असलम सम्मो भाई जो अब इस वक्त सिटी काउंसिल के रुकन भी हैं, उन्होंने कहा है कि हम इंशाल्लाह आप लोगों की आवाज़ बनेंगे और आप लोगों के काम भी करेंगे और अब्बासी शहीद अस्पताल को उसकी पुरानी पोजीशन में लाएंगे जो पहले थी। अब यह है कि इंशाल्लाह हम सब मिलके उस पर हमारे साथ जो है अहमद साहब भी थे और डायरेक्टर साहब भी हमारे साथ थे, मौजूद थे प्रोग्राम में, उन्होंने भी मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। और जैसे भी यहाँ पर बहुत काम की ज़रूरत है। अच्छा, जिन लोगों को पिछले 35 साल से इस शहर पे बैठे हुए थे, उनका ये काम था कि हॉस्पिटलों पे तवज्जो देते, एम्प्लॉयज़ पे तवज्जो देते। उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया कि कोई उनको अच्छे नाम से याद करे। कराची के लोगों ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विज़न, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े और बिलावल भुट्टो की क़यादत पे एतमाद का इज़हार करते हुए भरपूर तरीके से हमारे यहाँ चेयरमैन वाइस चेयरमैन को कामयाब किया है। और मेयर कराची जो बिलावल भुट्टो ने कहा था जेला होगा, मुर्तज़ा वहाब की सूरत में आया है। और डिप्टी मेयर सलमान मुराद जो शहीद का बेटा है, अब्दुल्ला शहीद मुराद का बेटा है, उनकी क़यादत में शहर की सूरत हाल हम चेंज करेंगे। शहर में जितने भी रुके हुए काम हैं उनको कंप्लीट करेंगे। सिंध हुकूमत ने पहले से ही एक बहुत बड़ा बजट कराची शहर के लिए रखा है, इसके हवाले से हम काम करेंगे और काम करेंगे तो हमारा नाम होगा। बहावल नगर से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि बहावल नगर भावली चौक में डाकुओं ने दुकान का सफाया कर दिया। 3 डाकू शाहीन शॉप में दाखिल हुए और मोबाइल नकदी लूटने के साथ साथ ग्राहकों की जेबों का भी सफाया कर गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से जो इस वक्त दुकान पर मौजूद हैं। जी शहबाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर के भावली चौक में, जो कि मसरूफ़ तरीन इलाका है, जहाँ पर हज़ारों के तादाद में लोगों का आना जाना लगा रहता है। और यहाँ पर दिन दिहाड़े जो है डकैती की जो वारदात जो है वो देखने को मिली है। और यहाँ पर ये जो एरिया जो है थाना बी डिवीज़न के हदूद में आता है। हमारे साथ मौजूद है वो कस्टमर जो कि मौके पर मौजूद है वारदात पर, और इनसे हम बात करेंगे। सर, जब वारदात हुई थी आप मौके पर मौजूद थे और क्या मामला पेश आए, बताएँ आप। जी, हम जैसे पैसे निकालने अंदर बढ़े हैं तो 3 जने खड़े थे, तीनों के पास पिस्टल, तो उन्हें हमारे ऊपर पिस्टल लगा, बोलते हैं पैसा वगैरह सब कुछ निकाल दो वरना मार देंगे। हमने पिस्टल उसका नाम क्या है, पर्स वगैरह सब कुछ उनको दे दिया। बोलते हैं चुप करके बैठे रहो, ठीक है। चंडे वगैरह भी मारा और दुकानदार की भी काफ़ी चीज़ें वगैरह यानी कि खोसे, मोबाइल वगैरह, दुकानदार के भी पैसे वगैरह खोस के और भाग गए यहाँ से। दुकानदार को भी मारा पीटा किया है? जी जी, दुकानदार को भी चपेड़े मारी है। ये कितनी देर में वारदात हुई है? ये सिर्फ 8, 9, 10 मिनट का एक टाइम था बस। कोई मौके पे कुछ जुड़वाने आया, कोई इलाका, कोई लोग? दरवाज़ा बंद था, कोई भी अंदर नहीं आ सकता था। अंदर से उन्होंने ना, एक आदमी बाहर खड़ा था पिस्टल लेके दरवाजे के पास, जो भी अंदर आ रहा था उसको धक्का मार के आगे कर रहे थे।
जी जैसा कि आपने सुना इस कस्टमर की आवाज़ को जो कि मौके पर मौजूद था। वारदात के दौरान इनका कहना था कि मुझे भी मारा पीटा गया और दुकानदार को भी मारा पीटा गया। उनके हाथ से मोबाइल और नकदी यानी कि पैसे भी छीन ले गए हैं। उसकी अमाउंट की जो मिकदार है वो दुकानदार ही बता सकता है। ये जो मौके पर जो कस्टमर मौजूद था इसने मौके का जो हालात है वो बताया है। लिहाजा ये एक इंतजामिया के लिए सवालिया निशान है। अगर ये कराची का माहौल बहावल नगर में पैदा होने लगा है, अगर इस तरह से ये काम चलता रहा तो गरीब लोग जो ताजर लोग जो है बिजनेस करने में जो है वो नाकाम दिखाई देंगे, इंतहाई परेशान दिखाई देंगे। लिहाजा आला काम को चाहिए इस बात पर सख्ती से नोटिस लेते हुए इन जो वारदात करने वालों के खिलाफ कानून। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे छुट्टों से, जहां पुलिस ने 14 साल लड़के पर FIR काट दी है। असल मनशियात फरोशों को पकड़ने के बजाय गांव से मवेशी बेचने आए लड़के का मनशियात के केस में चालान कर दिया। पुलिस की इस नाइंसाफी के खिलाफ शहर की ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे निसार रजा आराई वहाँ पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं। जी निसार, बताइएगा क्या सूरत हाल है और क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस टाइम पर जुडो शहर का मेन रोड ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ एक एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें कोली बरादरी, लगाई बरादरी और शहर के मुख्तलिफ कारोबारी हज़रात मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे इनका क्या कहना है और ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है। नंदलाल DSP जो हैं इसको ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो काम है मंशात, चोरी, बदमाशी, ये काम अमन इधर करना, चोरी बदमाशी को ख़त्म कराना है। ये मंशात फरोशों का जो है सरपरस्त है, ये वडेरों का कमदार है, इसको निकाला जाए। इस DSP को इसका काम यही है, यही कह रहा हूँ कि ये मंशात के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, चोरों के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, बदमाशों के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। इसका काम यही है मंशात चलवाना या सियासी लोगों की जो है कमदारी करना। इलेक्शन हो तो ठप्पे मारने के लिए फोर्स लेके पहुंच जाएगा और किसी की ज़मीन पे नाजायज़ कब्जा करना हो तो उधर फोर्स लेके चला जाएगा। इसलिए हम पुरजोर मदद करते हैं कि पुलिस गर्दी नामंजूर। पुलिस थी वई करप्ट या कंहिं बि ॻाल्हि रुगो करण लाइ तयारु कोन आहे। हाणे हिते वॾो ॾिसो ज़ुल्म जी इंतिहा लॻी पई आहे। जेके वॾा मंशियात फरोश आहिनि, जेके हिते जेको आहे सो चर्च पिया हलाइनि, जेके हिते जेको आहे सो 2100 अलाए कहिड़ा गुटका पिया विकिणनि, उन्हनि खे केरु बि कुझु बि करण लाइ तयारु न आहे। हीअ नंढड़नि ॿारनि 14 साल केबिन वारो को हिते मूं ॿुधो त को हिकिड़ो भुरगड़ी शरीफ़ माण्हू हुनखे झले विधऊं। हिते लाचारी छोकिरो 12 सालनि जो, हिते 13-14 सालनि जो हिकिड़ो लिगारी छोकिरो, उन्हनि खे झले ही खानापुरी सिर्फ़ खानापुरी लगी पई है। जी बाबा मथे असां मोकिले सघूं था, असां हेतिरनि माण्हुनि खे कयो अथऊं, गिरफ़्तार कयो अथऊं, हेतिरियूं FIR असांजे नंढड़े छोकिरे ते हिन ज़ुल्म कयो आहे। हुन झले जुॾे में आयो, चेलो विकण तो गिरफ़्तार करे चैलान करे छॾियो। असां आलिया अख़्तारनि खे DIG IG सिंध सेशन हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट हाई कोर्ट जज के साहिबान खे गुज़ारिश आहे त जल्द खां जल्द असां इंसाफ़ कयो वञे ऐं DSP जुॾे खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे इनके गिरफ़्तार कयो वञे। इन्होंने इस बात की बहुत ज़्यादा मजम्मत की कि 14 साल का तालिम था जो शहर किसी काम से आया था और पुलिस ने उसको पकड़ के सफीना और गुटके के केस में, मंशियात के केस में चलान कर दिया। इन्होंने DSP मिपोकास, IG सिंध, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद ने हज 2023 के लिए सऊदी अरब के शानदार इंतजाम को सराहा। वो आज मक्का मुकरमा में सऊदी अरब के वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीक से मुलाकात कर रहे थे। सऊदी वज़ीर ने पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से आज ज़मीन को फराहम की जाने वाली इंतजामात और सहूलियात के बारे में आगाह किया। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि हमने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में अपने आज ज़मीन को बेहतरीन रिहाइश फराहम की है। हर हाजी की कुर्बानी के जानवर का बंदोबस्त करने के लिए 55,000 वापस किए हैं। उन्होंने सऊदी वजीर से दरख्वास्त की कि पाकिस्तान का हज कोटा बढ़ाया जाए। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट को आइंदा हज सीजन कराची और लाहौर तक तोसी दी जाए। मदीना में पाकिस्तान हाउस की मुंतकिली के मामले पर रोशनी डालते हुए वजीर ने कहा कि हमारे मिशन को मरकज़ ये नई इमारत फराहम की जानी चाहिए। सऊदी वजीर हज ने कहा कि हज अखराजात को कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। विजन 2030 के तहत रोड टू मक्का मंसूबे को पाकिस्तान के दीगर शहरों तक भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने पाक सऊदीया दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का भी इजहार किया।
कराची के इलाके मलीर हाट में मुस्लिम लीग नून लेबर विंग सिंध के सदर मुनव्वर रजा की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के रहनुमाओं ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से नूर अमीन की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके मलिर हाट में मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के तहत सैयद मुनव्वर रजा के हवाले से ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून लेबर विंग कराची के सदर सैयद अखलाक हाशमी, चीफ ऑर्गेनाइजर खुर्शीद अली हजारवी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रिहाना राजा, सीनियर नायब सदर आसिफ अब्बासी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इजाज खान हजारवी ने शिरकत की। लेबर विंग कराची के सदर सैयद अखलाक हाशमी ने कहा कि मुनव्वर रजा हमें नहीं रहे, लेकिन मुनव्वर रजा का मिशन और नजरिया हमें मौजूद है। मुनव्वर रजा जैसे रहनुमा सदियों में पैदा होते हैं। मेरे सदर थे सिंध के वो, और यहाँ ये भी मैं बताता चलूँ साथियों को तमाम को कि मैं 85 में जब मियाँ साहब को ज्वाइन मैंने किया, और उसके बाद कुछ हालात ऐसे पैदा हुए कि मैं घर जाकर बैठ गया, और उसमें जो ना जब शेख अब्दुल बारी साहब बैठे हुए हैं, इनके ज़रिए जनाब मुझे बुलाया गया और मुझे कराची डिवीज़न की ज़िम्मेदारी सैयद मुनव्वर रज़ा साहब ने दी, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने उनकी ये ज़िम्मेदारी कबूल की और बड़े अच्छे तरीके से चलाया है। क्योंकि आज वो मुस्लिम लीग का जो एक तनावर दरख्त जो बन चुका था, वो दरख्त जो है ना जिसके साए में पूरी मुस्लिम लीग आकर बैठती थी, और पता नहीं किन किन लोगों की वहाँ जो शिकायत थी, जो वाटर बोर्ड के मुलाजमीन के जो काम थे वो वहाँ से पूरे होते थे, आज वो हम में से नहीं है। मुनव्वर रज़ा साहब का ठीक है, और ज़ाती तौर पे तो मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन जितने मेरे सीनियर भाइयों ने उनकी तारीफ़ें की तो यकीनन वो एक बहुत बुलंद पाया इंसान थे, बहुत बुलंद लीडर थे कि जिनके पीछे इतने प्रोग्राम किए जा रहे हैं, तो खुदा उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे। और वो कराची के एक बड़े इदारे वाटर बोर्ड के जो है यूनियन के सदर भी रहे और मुस्तकिल रहे और उनके इलेक्शन भी जीतते रहे। उनकी ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि उन्होंने हमेशा जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के परचम को बुलंद रखा, और उसके उनकी ये जो जद्दोजहद है जो तवातर के साथ रही मियां नवाज शरीफ के साथ, और कैद व बंद में भी साथ रहे, बुरे वक्त में भी साथ रहे और मरते दम तक साथ रहे। उनका वो जो अभी जो हमारे साथी ने कहा कि वो जो है वो एक खानगाह थी मुस्लिम लीग के लोगों के लिए, जहाँ पर जिस किसी मुस्लिम लीग की ज़्यादती होता था, किसी किस्म होती थी, तो लोग वहाँ पर चले जाते थे। मजलिस के इख्तिताम पर मरहूम सैयद मुनव्वर। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के बलोचिस्तान के इलाके कपकपार में कार्रवाई, आला क्वालिटी की चर्च, क्रिस्टल आइस और हीरोइन की भारी खेप पकड़ी गई। कोस्ट गार्ड्स को खुफिया ज़राए से बॉर्डर के इलाके कपकपार में एक घर में भारी मिकदार में मंशियात मौजूद होने की इतला मिली, जिस पर डायरेक्टर जनरल ने मुतल्लिका कमांडर, ऑफिसर्स और जवानों पर मुश्तमिल टीम तश्कील देने के अहकाम जारी किए। टीम ने ऑपरेशन के दौरान खाली घर से आला क्वालिटी की 129 मन से ज़ायद चर्च, 6.25 मन क्रिस्टल आइस और 53 किलोग्राम हीरोइन बरामद कर ली है, जिसकी मालियत बैनुल-अक़वामी मार्केट में $136 मिलियन के लगभग है। मंशियात बैरून मुल्क स्मगल करने के लिए छुपाई गई थी। कोस्ट गार्ड्स ने मनशियात कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शरकपुर शरीफ में इंतजामिया की गफलत से मवेशी मंडी वीरान पड़ी है। मंडी में कुर्बानी की जानवर मौजूद नहीं, जिसकी वजह से खरीदार परेशान हैं। मज़ीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे फजल कयूम खान से। जी फजल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से लगाई गई मवेशी मंडी शरकपुर जो ईद कुर्बान पे लगाई जाती है। हर साल की तरह मवेशी मंडी तो लगा दी गई, लेकिन महंगाई का ऐसा फैक्टर चल रहा है कि ना यहाँ व्यापारी है ना यहाँ कस्टमर है। आप देख सकते हैं कि सारी मवेशी मंडी खाली पड़ी है और जो दफातर के कैंप भी हैं वो भी खाली हैं। सिर्फ वेटरनरी हॉस्पिटल का कैंप और म्यूनसिपल कमेटी के कैंप में कुछ अफराद मौजूद हैं। और मंडी में फुकदान जो है चीज़ों का, वो ना यहाँ कोई पानी पीने का और जानवरों के लिए किसी किस्म का भी कोई इंतज़ामात भी नहीं है। और सुनने में आया है कि मवेशी मंडी में शाम 6 बजे के बाद चंद जानवर आते हैं और वो भी चक्कर लगाकर वापस चले जाते हैं। और आवाम यही देख रही है कि या तो कोई महंगाई कम हो जाए या उन्हें तनख्वाहें मिल जाएं, जिससे वो ईद कुर्बान की आखिरी रात तक
कोई ख़रीदारी कर सके और अपने जानवर को सुन्नत इब्राहिम। आपको बताएं कि डिस्कोट में टीटू और मीटू नामी 2 बकरों की धूम है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए मालिक ने बाप की रिवायात को बरकरार रखते हुए इन बकरों को पाला है और इनका नाम टीटू और मीटू रखा है। मालिक हर साल बकरे कुर्बानी के लिए पालता है और उनके नाम भी बड़े शौक से रखता है। नाम के साथ साथ उनकी खुराक भी एक आम जानवर से बहुत ज्यादा है। मालिक का कहना है कि उन बकरों को घी, बनौला दूध, मक्खन और चने की दाल दूध में डालकर खिलाई जाती है। दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। जी ये अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो से कुर्बानी के जानवर, एक का नाम टीटू, एक का नाम मिंटू रखा है हमने। ये हमने खुद पाले माशाल्लाह। इसे खाने में जो से देते हैं, दाल देते हैं, ये खाल होगी, ये साथ सूखी रोटी होगी, साथ ये मक्खन वगैरह, मक्खन हो गया, बादाम वगैरह, ये हम साथ इसके देते हैं खुराक। ये दादा अबू के दौर से चलता है, ये वो पालते थे शौक से और अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए शौक है। वो वहाँ दादा अबू के टाइम से चलता आ रहा है ये। अब ये माशाल्लाह पापा ने पाले है और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए, सुन्नत इब्राहिम जो से अदा करने के लिए इन्हें ज़िबा इंशाल्लाह किया जाएगा। जी जी, हम बालकर का कहना है जी, जो दोनों टीटू मीटू हमने बड़े शौक से पाले पे जी। पहले मेरे दादा जान से वो बड़े शौक से बकरे पालते थे और उनके नाम रखते थे। अब हमने भी मेरे वालिद साहब है जवेद मुगल साहब, उन्होंने ये बकरे पाले हैं और उन्होंने बड़े शौक से इनका नाम भी रखा है। उनके बेटों ने और उनके वालिद साहब ने इनका नाम टीटू और मीटू रखा है। अगर मार्केट में इनका रेट लगाया जाए तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए के बकरे हैं और कद में देखने में बहुत ही खूबसूरत और लाड़ प्यार करने में किसी को भी तंग करते ना मारते ही हैं। और दूसरा ये इनका कहना कि इसको हमने बड़े शौक से पाला है। इसको हम दाल खिलाते हैं, इसको हमने सूखी रोटी खिलाई है, खाल खिलाई है, बरनाला खिलाया और दूध में दाल भिगोकर इसको खिलाते हैं। ये डेली बेस की खुराक है और इनको बड़े शौक से हम पाला है। और दूसरा इनकी रहायश के लिए हमने स्पेशल पंखा लगाया हुआ है जो कि इनको ठंडक रखता है। इनके लिए हमने बेहतरीन बैठने उठने का इंतज़ाम किया है ताकि ये अल्लाह की राह में हमने ज़िबा करने हैं और इनको बड़े शौक और ज़ौक़ के साथ हमने पाला है और रखा हुआ है। और हमारी वज़ारत मज़हबी अमूर ने पाकिस्तानी आज़मीन हज की मदद और सहूलत के लिए मिना में मरकज़ी कंट्रोल ऑफिस कायम कर दिया है। इस तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक कंट्रोल रूम में मालूमात और राबते को यकीनी बनाने के लिए एक इंफॉर्मेशन सेल कायम कर दिया जाएगा। इसके अलावा गुमशुदा हाजियों या गुमशुदा सामान की तलाश में मदद के लिए एक खुसूसी सेल भी कायम किया गया है। निजी तौर पर हज के लिए जाने वाले आज़मीन की निगरानी और उनके मसाइल के हल के लिए भी अलहदा मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ दीगर खसूसी यूनिट्स, व्हील चेयर डेस्क वगैरह हाजियों की सहूलत के लिए कायम किए गए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली का बोझ अब तालीम याफ्ता नौजवानों ने उठाना है। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस नौजवानों ने मुल्क को मुश्किलात से निकालना है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने शोहदाए APS यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नौशेरा के पहले कॉन्वोकेशन से बहैसियत मेहमान खसूसी खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि वालिदैन की मुश्किलात का खात्मा और उनके चेहरों पर खुशी लाना भी नौजवानों की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपना मुस्तकबिल संवारने के साथ वालिदैन का सहारा भी बनना है। वालिदैन और उस्ताज़ा की मेहनतों की बदौलत आज आपके हाथों में इंजीनियरिंग की डिग्री है। गुज़िश्ता 7 माह में तमाम यूनिवर्सिटियों के कॉन्वोकेशन में इंतहाई खुशी से शिरकत की। बतौर चांसलर मेरी ख्वाहिश है कि यूनिवर्सिटियों को तमाम सहूलियात फराहम करूँ। यूनिवर्सिटियों का वकील बनकर सूबाई हुकूमत से यूनिवर्सिटियों को सहूलत फराहमी के लिए किरदार अदा कर रहा हूँ। खुशी हुई है कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नौशहरा के नौजवानों की बेहतरीन किरदार साजी की गई है। कोट गुलाम मोहम्मद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन का इंकशाफ हुआ है। BISP के तहत मिलने वाला वजीफा करप्शन की नज़र हो गया। रकम की तकसीम में बड़े पैमाने पर घपले सामने आए हैं। 9,000 के वजीफे पर 1,500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक की कटौती की जा रही है, जिस पर इंतजामिया की खामोशी सवालिया निशान बन गई। ज़राए के मुताबिक बहती गंगा में डिवाइस माफिया और कुछ बाअसर लोग हाथ धोने में मसरूफ़ अमल हैं। डिवाइस वालों के मुताबिक कुछ लोग हमसे रोज की बुनियाद पर भत्ता ले रहे हैं। उनके नाम और तफसील इदारे हमसे ले रहे हैं।
اور اب کچھ بات موسم کی تو غازی میں موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، تاہم دوسری جانب واپڈا انتظامیہ کی نااہلی سے رات سے بجلی بند ہے، جس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے تحصیل رپورٹر محمد علی مشوانی سے۔ جی محمد علی، بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں کی؟ جی میں اس وقت موجود ہوں گدوالیہ میں۔ گزشتہ چند روز سے علاقے میں شدید گرمی تھی، جس کی وجہ سے کئی لوگ بیمار بھی ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات سے 12 رحمت کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں کمی ہو چکی ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ رات بھر سے بجلی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی بند ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے لوگ شدید مشکلات کا سامنا ہے اور کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو رحمت کر دی، لیکن دوسری طرف زحمت بھی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے بجلی بند ہو چکی ہے۔ جی عید قربان کی آمد آمد راولپنڈی کے مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانور کی خرید و فروخت جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بازار میں چھریوں اور ٹوکے کے کاروبار بھی عروج پر پہنچ چکے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے ایم.اے. راج سے۔ جی راج، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ صاحب جو چھریوں کا کاروبار کرتے ہیں اور چھری چلانا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کاروبار کے کیا حالات ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بڑے زبردست طریقے سے آپ چھریاں چلا رہے ہیں، ٹوکے چلا رہے ہیں، یہ کاروبار کب شروع کیا اور آج کے کیا حالات ہیں؟ یہ ہمارا بائی کام ہے جی، شروع سے ہی ہم کر رہے ہیں۔ یہ کتنا عرصہ ہو گیا یہ کاروبار میں؟ یہ سن 75 سے اسکول چھوڑ کے ہم بیٹھے تھے ادھر۔ اور ابھی آج کل کیا حالات ہیں، جو کاروبار ہے، جو ملکی حالات چل رہے ہیں، اس میں کاروبار کے کیا حالات ہیں؟ کاروبار آج اتوار ہے جی، کوئی کام ہلا ہے، کوئی نظر ہے۔ ویسے تو ہم ادھر فارغ بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ عید نزدیک ہے، سر پہ بہت کام تھا، لیکن آج کل کام نہیں ہے اس حساب سے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال کی بنسبت اس سال کام کے کیا حالات ہیں؟ کم ہے، بہت کم ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جس طرح ملکی صورتحال ہے یا کام کم ہے، تو آپ کا جو گزر بسر ہے کیا وہ اس میں صحیح طریقے سے ہو رہا ہے؟ نہیں جی، گزر بسر بس اللہ ہی ہے جو پورے کر دیتے ہیں، یہ سے ابھی تو بہت مشکل ہو گیا۔ ویسے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں کس چیز سے فرق پڑا ہے اور کس طرح بہتر ہو سکتا ہے؟ سارا ملک آپ کو سامنے ہے، مہنگائی سے ہی ہے نا، اور کیا ہے اس میں؟ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، لوگوں کی خرید سے باہر ہو گئی ہے۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے ارباب اختیار کو؟ ہم نے کیا پیغام دینا ہے جی، اپنی لڑائیاں چھوڑے، عوام کے جس کی ووٹ لی ہے اس کا خیال کریں، جس کا ووٹ لیا ہے خیال اس کا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔